हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर 3 ऑफ द आय दृष्टि घटना चक्र का करंट अफेयर का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से। डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2025, ठीक है, ये हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का 2025 में। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोल रहा है इसमें? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 प्रोवाइडेड द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया. After 20 years, considering the changing context such as the increasing climate risk and experiencing of the COVID-19 pandemics, comprehensive amendments were made in 2025. After receiving presidential assent on March, the bill became the act and came into effect on 9th April 2025. इसमें क्या क्या देखिए क्या बोल रहा है? The key facts to remember: after the amendment, the National Disaster Management Authority (NDMA) and State Disaster Management Authority (SDMA) will coordinate for the preparation and approval of the national plan. Okay, will coordinate for the preparation and approval of the national plan in line with the national policy. Okay, the NDMA and SDMA जो coordinate करेंगे for the national policy. ठीक है. Earlier, the National Executive Committee (NEC) and State Executive Committee used to prepare national and state disaster management plan respectively under the direction of the NDMA. अब जो है collaboratively काम करेंगे ये दोनों. Earlier, the central government framed the rules under the act. ठीक है, the NDMA itself had no power to make rules. अब जो NDMA खुद बनाएगी इसको. As per the amended laws, the NDMA can now frame necessary regulation with prior approval of the central government. ये नेसेसरी रेगुलेशन खुद NDMA बनाएगी, लेकिन प्रायर अप्रूवल चाहिए किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का. ठीक है ना, किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का. ठीक. The definition of the disaster management now explicitly includes disaster risk reduction. अब ये खुद जो इसका डिफिनीशन है ना डिजास्टर मैनेजमेंट का, अब जो ये इंक्लूड किया है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को भी, DRR को भी इंक्लूड किया है. सिचुएशन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर विल नॉट बी कंसीडर्ड डिजास्टर अंडर द एक्ट. लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन होगा वो इसमें डिजास्टर के अंदर नहीं आएगा. State governments have been given the power to establish separate urban disaster management authority for the state capitals or large cities with municipal corporation excluding Delhi NCT and Chandigarh को exclude करके. As per the act empowers state government to continue as state disaster response force. स्टेट डिजास्टर SDRF कंटिन्यू करेगी और जो है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पांस बना सकती है. क्या बना सकती है? डिस्ट्रिक्ट. देखिए अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बना सकती है इससे स्टेट जो है अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. और देखिए यहाँ पे द एक्ट ग्रांट्स स्टैट्यूटरी स्टेटस टू एग्जिस्टिंग बॉडी सच एज द नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी एंड हाई लेवल कमेटी को स्टैट्यूटरी जो है स्टेटस दे दिया गया है इनको. ठीक है ना, मतलब जो है पूरी कंप्रेहेंसिवली जो है ये दोनों मिल के काम करेंगे, बस यही इसमें बता रही है. सोशल प्रोटेक्शन डाटा पोलिंग सोसाइटी. सोशल प्रोटेक्शन डाटा पोलिंग सोसाइटी. ठीक है, सोशल प्रोटेक्शन डाटा पोलिंग सोसाइटी क्या बोल रहा है? ठीक है, सोशल प्रोटेक्शन डाटा पोलिंग सोसाइटी. The Ministry of Labour and Employment has initiated a social protection data polling exercise in collaboration with state government and international labour organization ILO के साथ ये कोलैबोरेट करके ये एक सोशल प्रोटेक्शन डाटा पोलिंग की एक्सरसाइज की है. The exercise uses encrypted Aadhaar as unique identifier to integrate data across 34 major central schemes including मनरेगा, EPFO, ESIC, APFY and PM Poshan. Over 200 crore records were processed and it was found that 65% of India's population, 92 crore people, is covered by at least one social protection benefit. 65% of Indian population is covered minimum one social protection benefits. Out of this, 48.8% of the population is receiving cash benefits under central scheme. As per the ILO World Social Protection Report, India social मतलब वर्ल्ड ये याद रखना, ILO का ये वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट कौन लाता है? ILO लाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लाता है, जो कि पहला जो ऑर्गेनाइजेशन था यूएनओ का, जो 1990 में बना था, जो किसके थ्रू? यूनियन लीग के थ्रू. ठीक है, ठीक है, नेशंस लीग था उसमें. इंडिया सोशल प्रोटेक्शन कवरेज हैज डबल्ड फ्रॉम 24% इन 2021 टू 48.8% 2024 में. इसका बढ़ गया, डबल हो गया. Official visit of the President of the European Commission. At the invitation of the Prime Minister Narendra Modi, Ursula von der Leyen, President of the European Commission, paid an official visit to India. ठीक है, फरवरी में. This was her third visit to India in her capacity as President. This was the first ever visit to India by the EU College of the Commissioners.
द मिनिस्ट्री ऑफिशियली किक स्टार्टेड फेज 1 ऑफ द एक्सरसाइज इन हाइब्रिड मीटिंग, ठीक है, मेज 1, ठीक है, फेज 1 इंक्लूड्स 10 स्टेट, ठीक है, फेज 1 जो क्या करता है इसमें, इसके अंदर 10 स्टेट्स है, ठीक है, इसके अंदर 10 स्टेट्स हैं, ठीक है। 2 मिनट ब्रेक होता है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, ब्रेक खत्म किया जाए। तो 19 मार्च, फेज 1 क्या इंक्लूड 10 स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक एंड गुजरात। द लेबर डिपार्टमेंट ऑफ दिस स्टेट्स आर द नोडल एजेंसी, ठीक है, क्या नोडल एजेंसी है रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलिंग एंड शेयरिंग स्टेट स्पेसिफिक डाटा विद द सेंटर फॉर कंसोलिडेशन, वेरिफिकेशन एंड डिप्लीकेशन, ठीक। देखना लीड्स रिपोर्ट क्या बोल रहा है, लीड्स रिपोर्ट क्या बोला, लीड्स लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। क्या बोल रहा है, इज कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड, DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ लीड्स रिपोर्ट वाज रिलीज इन 2018, ठीक है, 2018 में रिलीज किया गया था। ये फर्स्ट चेक इसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल रिलीज दिस लीड्स रिपोर्ट 2024 रिपोर्ट। दिस इज द 6th एडिशन ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है, दिस इज द 6th edition of the report, ठीक है। The report presents an in-depth review of the logistics system in the state, union, territory level in India. It is based on the both perception-based and objective indicators. Okay, the report classifies 70 perception-based indicators into 4 key pillars. Okay. The 2024 to sustainability and inquiry logistics was included in the 4th pillar for the first time. इसको याद रखना यार कि कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ कौन सा डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। लीड्स वाला लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। लीड्स 2024 देखना
ग्रेडिंग ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। कैटेगरी हो गया, अचीवर्स हो गया, फास्ट मूवर्स हो गया एंड एस्पायरर्स हो गया। तो 4 कैटेगरी कौन कौन है? लैंडलॉक स्टेट, कोस्टल स्टेट्स, नॉर्दर्न स्टेट्स एंड अन इंडियन टेरिटरी। इसको याद नहीं होगा आपको, बस इतना याद कि अचीवर्स में कौन कौन? उत्तराखंड है, लैंडलॉक में उत्तर प्रदेश भी है, ठीक है। फास्ट रनर में कौन है? फास्ट मूवर में मध्य प्रदेश है। एस्पायरर्स में छत्तीसगढ़ है। याद रखने से, ठीक है। बिहार जो फास्ट मूवर्स में है, ठीक है, याद रखो फास्ट मूवर्स में है। इनमें चलते आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, इंडियन टेरिटरी में दिल्ली, चंडीगढ़ एंड दिल्ली है एंड पुदुचेरी यहाँ पे। एस्पायरस में अंडमान निकोबार है। भाषिनी, ठीक है, भाषिनी देखना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड भाषिनी नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन। क्या लॉन्च किए थे? भाषिनी लॉन्च किए थे, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, ठीक है, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन या NLTM 2020 में फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years, 3 साल के लिए लॉन्च किए थे, ठीक है। द डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन DIBD अंडर द डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन DIC इज मैनेजिंग एंड ऑपरेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ भाषिनी, ठीक है, मैनेजिंग द एंड ऑपरेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ भाषिनी, ठीक है। कौन? डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन एंड डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, ठीक। की फैक्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? द गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम एंड डिजिटल इंडिया भाषिनी, यह डिवीजन ऑफ मिजोरम एंड डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन साइंड ए लैंडमार्क MOU टू प्रमोट क्या? Multilingual governance and empower tribal community through language technology. Tripura became the first northeastern state and 8th state overall in India to sign an MOU with Bhasni for multilingual governance. Meghalaya in April 2024 signed an MOU to integrate with Garo and Khasi language into the Bhasni platform. Later Puducherry signed it. तो बस इतना जानिए कि लैंग्वेज से रिलेटेड है भाषिनी वाला। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो ध्यान से पढ़ लेना भाई। क्या बोल रहा है इसमें देखा? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने इसको रिलीज किया है, क्या किस नाम से? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 आज से फिर 2023 मतलब बाइनियल है ना, बाइनियल है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में। अच्छा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? देहरादून में, ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। फॉरेस्ट कवर मैपिंग डिफिनेशन, लैंड मोर देन 1 हेक्टेयर इन एरिया विद ट्री कैनोपी, ठीक है, लैंड मोर देन 1 एकड़ एरिया, ठीक है, लैंड मोर देन 1 हेक्टेयर इन एरिया विद ट्री कैनोपी एंड डेंसिटी मोर देन 10%, बट डेंसिटी 10% ज़्यादा होना चाहिए, इंक्लूडिंग ट्री ऑर्कर्ड्स, ठीक है, इंक्लूडिंग ट्री ऑर्कर्ड्स, बम्बू, पाम, सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट है, कैनोपी डेंसिटी मोर देन 70%, ठीक है, कैनोपी डेंसिटी जो है वेरी डेंस फॉरेस्ट क्या है? कैनोपी डेंसिटी मोर देन इक्वल टू 70%। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कौन है? कैनोपी डेंसिटी 4%। ये सब आएगा नहीं यार, तो फिर भी जानना चाहिए थोड़ा बहुत। ओपन फॉरेस्ट कैनोपी लेस देन डेंसिटी 10 to 14%, स्क्रब कैनोपी डेंसिटी लेस देन 10%, जनरली विद द स्क्रब्स interspersed with tree. Data source utilizes satellite imagery from ISRO, analyzes third sensor at IRS resources satellite, ठीक है। की हाईलाइट्स क्या है रिपोर्ट का? टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री, ठीक है, कितना है टोटल फॉरेस्ट? अच्छा, फॉरेस्ट कवर अलग होता है, ट्री कवर अलग होता है, तो दोनों मिला क्या हो रहा है? तो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री कितना है? कितना? 25.17%। बस इतने याद रखिए, एरिया याद नहीं होगा। 8,27,356.95 किलोमीटर स्क्वायर है, और इंडिया का एरिया कितना है? लगभग 32 लाख है, ठीक है, 32 लाख है, और इसमें से 8 लाख जो है जो फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पे, लगभग 25.17% है, ठीक है, लगभग 25.17% है ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, ठीक है। द टोटल फॉरेस्ट कवर हैज एन एरिया ऑफ, फॉरेस्ट कवर कितना है? 21.76% है, ठीक है, कितना है फॉरेस्ट एरिया? फॉरेस्ट कवर कितना है? 21.76% है। वेयर द ट्री कवर कितना है? ट्री कवर कितना है यहाँ पे? ट्री कवर है 3.14%, ठीक है, 3.14% है। अकॉर्डिंग टू द ISFR 2021 रिपोर्ट, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर वाज 24.62 था, जो कि मतलब इसमें बढ़ाया 2.91% बढ़ाया है, ठीक है। द करेंट असेसमेंट शोज एन इंक्रीज इन 156.05% इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर एट नेशनल लेवल, ठीक है, तो बढ़ा हुआ एक कर सकते हैं, बढ़ा है ये। फॉरेस्ट कवर कितना है? फॉरेस्ट कवर है कितना है? 21.76। ट्री कवर कितना है?
3.41%। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है 25.17%। ये याद करना, परसेंटेज आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो याद करने लग रहा है मैं आई विल टेल यू, ठीक। इसका कितना 1.33% है। नॉन फॉरेस्ट कवर कितना 73.50। जियोग्राफिकल एरिया इज कंट्री 32 लाख। कितना है जियोग्राफिकल एरिया कितनी कंट्री का बताइए भाई? 32,87,468.88, ठीक है। 32 लाख है 87,000 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री इज इंक्रीज बाई 0.18% इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू लास्ट वन। एरिया वाइज टॉप 3 स्टेट्स कौन है हैविंग लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर? देखिए एरिया वाइज पूछ रहा है, एरिया वाइज टॉप 3 स्टेट्स हैविंग फॉरेस्ट कवर कौन कौन है? मध्य प्रदेश है, ठीक है। मध्य प्रदेश है सबसे टॉप पे, मध्य प्रदेश है एरिया वाइज में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश का अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ है। तीनों को नाम याद रखना कि मतलब सबसे ज़्यादा एरिया किसका फॉरेस्ट कवर में? मध्य प्रदेश का, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का, उसके बाद छत्तीसगढ़ में। इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर विद रिस्पेक्ट टू टोटल जियोग्राफिकल एरिया। टोटल जियोग्राफिकल एरिया में ठीक करेंगे, देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना। इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज ऑफ द टोटल फॉरेस्ट कवर विद रिस्पेक्ट टू द जियोग्राफिकल एरिया, लक्षद्वीप जो है हाईएस्ट। कितना है लक्षद्वीप? लक्षद्वीप का कितना है 91.33% इसका जो फॉरेस्ट कवर है ना, मतलब उसका जो एरिया है जियोग्राफिकल एरिया 91.33% जो है कवर्ड है किससे? फॉरेस्ट एंड ट्री कवर से, ठीक है। है द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, क्या है हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, ठीक है। फॉरेस्ट कवर इसका हाई है यहाँ पे। मिजोरम है यहाँ पे, फॉलोड बाय मिजोरम। इसके बाद पहले लक्षद्वीप है, उसका मिजोरम है, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है 81.62%, ठीक है। पहले कौन आएगा? पहले जो है लक्षद्वीप आएगा, उसके बाद कौन आएगा? मिजोरम आएगा। मतलब टोटल जियोग्राफिकल एरिया देखा जाए 84.85 है मिजोरम का और 91.33 लक्षद्वीप है। उसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड आएगा 81.62% हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखना The present assessment also reveals that 19 states union territory have above 19 states जो है have above 33% of the geographical area under forest cover. Out of these 8 states अंडमान निकोबार, मिजोरम है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार है, अरुणाचल है, नागालैंड है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर है। ये लगभग 75% से ऊपर है इनका। लगभग कितना चाहिए? 33 पॉइंट चाहिए, ठीक है। The maximum increase in the forest and tree cover has been observed in the state of छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा, राजस्थान में। फॉरेस्ट कवर देखिए यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो पहले वाले में था। फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, मतलब एरिया के हिसाब से 3 स्टेट बाई एरिया, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में। उसके बाद स्टेट परसेंटेज हिसाब से देखें लक्षद्वीप और मिजोरम है, उसके बाद अंडमान निकोबार है परसेंटेज हिसाब से देखेंगे। मैक्सिमम डिक्रीज इन द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कहाँ डिक्रीज हुआ है? देखिए मैक्सिमम डिक्रीज उसी में हुआ है जहाँ पे ज़्यादा एरिया है, तो मध्य प्रदेश में, तो कर्नाटका में, लक्षद्वीप, लद्दाख, नागालैंड। तो मैक्सिमम ट्री कवर हैज बीन फाउंड इन, सबसे ज़्यादा ट्री कवर ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैक्सिमम ट्री कवर कहाँ पे? महाराष्ट्र में। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर तो पूरा मध्य प्रदेश, लेकिन सिर्फ ट्री कवर पूछे तो महाराष्ट्र है, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उसको याद रखना, महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश। वेरी डेंस फॉरेस्ट इंक्रीज कितना हुआ है? इतना हुआ है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है इतना, जितना इम्पोर्टेंट मैं आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक। तो यहाँ क्या दे रहा है? नोटेबल इंक्रीज इन मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर जब ऑब्जर्व इन आंध्र प्रदेश फॉलोड बाय महाराष्ट्र, ठीक। टोटल ग्रोइंग स्टॉक ऑफ वुड इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड इतना किलोमीटर विच कंपेरेटिव दिस इनसाइड फॉरेस्ट एरिया। अदर स्टेट मैंग्रोव स्टेटस क्या है देखिए, क्या सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा मैंग्रोव गुजरात में पाया जाता है, ठीक। सबसे मैंग्रोव गुजरात में नहीं, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, ठीक। क्योंकि वहाँ पे जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ना, मैंग्रोव फॉरेस्ट वेस्ट बंगाल रीजन में ये यहाँ पाया जाता है। पहले वेस्ट बंगाल में पाया जाएगा, उसके बाद गुजरात में पाया जाएगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल में पाया जाएगा, उसके बाद गुजरात में पाया जाता है, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाया जाता है, ठीक। फिर आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, महाराष्ट्र में, तो यहाँ सब में पाए जाते हैं, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेस्ट बंगाल, दूसरे नंबर पर गुजरात है। Among the state highest percentage growing stock in forest in area, highest per hectare growing stock in forest in Himachal Pradesh, followed by Kerala, Uttarakhand, ठीक है। Growing stock in forest. Among the Union Territory, highest per hectare growing stock in forest in Jammu Kashmir, ठीक है। Then Andaman Nicobar Island and Chhattisgarh. Total bamboo bearing area, ठीक है। Total bamboo bearing area of the country has been estimated to be इतना किलोमीटर। There is an increase of this kilometer square, yeah,
बम्बू बेयरिंग एरिया, ठीक है। मध्य प्रदेश है, जब यहाँ पे याद रखना, ठीक है, मध्य प्रदेश है द, ठीक है, हैज द मैक्सिमम बम्बू बेयरिंग एरिया। मध्य प्रदेश जो है द मैक्सिमम बम्बू बेयरिंग एरिया है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में। टोटल ट्री, ठीक है, ये हो गया। फिर टोटल ट्री ग्रीन कवर अंडर द एग्रो फॉरेस्ट्री आर द नेशनल लेवल हैज बीन एस्टिमेटेड दिस मच। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। एमंग द स्टेट हाईएस्ट बोर्डिंग स्टॉक इन एग्रो फॉरेस्ट्री महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, ठीक। अरुणाचल प्रदेश है मैक्सिमम कार्बन स्टॉक है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक है। फिर मध्य प्रदेश हुआ, ठीक। फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर इन डिफरेंट स्टेट क्या है, देखिए उत्तर प्रदेश में इतना है, ये हो गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कितना परसेंटेज है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, 9.96% है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में क्या है, फॉरेस्ट कवर 6.24% है और ट्री कवर 3.71% है, ठीक है। जियोग्राफिकल एरिया इतना है, फिर टोटल हो गया 32 लाख। इंडिया का 21.7% है, 21.7, और 3.40 इंडिया का है। तो यूपी का 9.96% है। तो इसका जो टोटल एरिया यूपी का, उसमें से 9.96% फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है। और इंडिया का जो है 25.16% है, ठीक है। ट्री का 3.40 है, 25.16% जो है टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है इंडिया का। और यूपी का कितना 9.96% है। बस इतना याद रखना, दैट विल बी इनफ, ठीक है। फॉरेस्ट कवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज इतना, वाइल द लद्दाख इज 2490 किलोमीटर स्क्वायर है। फॉरेस्ट कवर उत्तर प्रदेश क्या है, देखिए ISFR 2023। तो डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ द एरिया, ठीक है। क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश का पूछा, ठीक है, उत्तर प्रदेश का पूछा। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ द एरिया, एरिया के हिसाब से सबसे कहाँ पर फॉरेस्ट है, सोनभद्र में, उसके बाद लखीमपुर खीरी में, उसके बाद मिर्जापुर में है, ठीक है। दूसरा लखीमपुर खीरी है। डिस्ट्रिक्ट विद लोवेस्ट फॉरेस्ट सिटी भदोही में, उसका मऊ में, संभल में। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, ठीक है, ये सिर्फ लोवेस्ट हो गया। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म परसेंटेज में सोनभद्र आ गया, फिर चंदौली दूसरे नंबर पे, फिर श्रावस्ती। और डिस्ट्रिक्ट विद द लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में भदोही है, ठीक है। परसेंटेज में भी और एरिया में भी एक कम है। और हाईएस्ट परसेंटेज में भी और एरिया में भी सोनभद्र आ गया। बस 2 याद रखिए, ठीक। केन बेतवा रिवर लिंकिंग नेशनल प्रोजेक्ट, ठीक है। केन बेतवा रिवर लिंकिंग नेशनल प्रोजेक्ट, ठीक। केन बेतवा रिवर नेशनल लिंकिंग प्रोजेक्ट मतलब केन रिवर जो एक्स्ट्रा वाटर होगी ना, एक्सेस वाटर होगी केन रिवर में, वो बेतवा रिवर में उसको मतलब वहाँ फ्लो करा के, ठीक है, वहाँ पे जो एक्सेस रिवर है, एक्सेस वाटर है, उसको बेतवा रिवर को प्रोवाइड कर देगी। और जिससे जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो रीजन है ना, वहाँ पे ड्रॉट एरिया है, बुंदेलखंड रीजन में, वो इरीगेशन वहाँ पे प्रोवाइड कर देगा इसका थ्रू, जो एक्सेस वाटर रहेगा केन रिवर का। यही इसमें दिया है इसके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी। देखिए, केन बेतवा रिवर लिंकिंग नेशनल प्रोजेक्ट on 5 December 2024, Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone of the Ken Betwa River Linking National Project. The foundation ceremony was held at Khajuraho, Madhya Pradesh में हुआ था। This is the first interlinking of river project. First interlinking of river projects in the country under the National Perspective Plan. Under this project, a dam will be constructed on the Ken River at Dhawadhan village in Chhatarpur district, Madhya Pradesh. For the implementation of this project, a special purpose vehicle named Ken Betwa Link Project Authority (KBLP) has been established हुआ है. This estimate total cost of Ken Betwa Link project is 44,605 crore. Inauguration of the Sonmarg tunnel का इनागुरेशन के बारे में बात कर रहा है ये. सोनमर्ग टनल के बारे में बात कर रहा है भाई. On January 13, 2025, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Jedmore Tunnel in Jammu and Kashmir. The tunnel has been renamed as Sonmarg Tunnel. It is notable that Jedmore, जम्मू कश्मीर में जेडमोर टनल बोलते हैं या सोनमार्ग टनल बोलते हैं. ठीक है, सोनमार्ग टनल या जेडमोर टनल इन जम्मू एंड कश्मीर. द टनल हैज बीन नेम्ड एज सोनमार्ग. जेडमोर को क्या बोलते हैं, सोनमार्ग टनल बोलते हैं जम्मू कश्मीर में. ठीक है. It is notable that Jedmore Tunnel was originally named after the Z-shaped road in section of the English alphabet Z, where the tunnel has been constructed. This project is conceptualized for all-weather connectivity with Sonmarg. The tunnel is located in the Ganderbal district, Jammu and Kashmir. The total project length is 12 km. है. It has been constructed at the cost of 2,700 km करोड़ में ना cost इसका. The project includes इतना किलोमीटर
मेन टनल 6.4 किलोमीटर मेन टनल एंड 6.412 किलोमीटर लॉन्ग पैरेलल स्केप टनल, मतलब स्केप टनल भी बनाए रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे, ठीक है, स्केप टनल भी बनाए लोग, ठीक है। दिस इज ए 2 लेन बाई डायरेक्शनल रोड टनल बिल्ट बिटवीन गगनगिर, ठीक है, गगनगिर एंड सोनमार्ग इन गांडरबल डिस्ट्रिक्ट एंड सोनमार्ग इन गांडरबल डिस्ट्रिक्ट, ठीक, ये हो गया। Situated at the altitude of about इतना किलोमीटर लेवल, the tunnel will improve connectivity between श्रीनगर and सोनमार्ग on the route of लेह, मतलब ये कनेक्टिविटी बढ़ाएगी, ठीक है, कनेक्टिविटी बिटवीन श्रीनगर एंड सोनमार्ग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ऑन द रूट टू लेह। मसाली इंडिया फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज, ठीक है, मसाली देखना, मसाली जो है इंडिया फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज, ठीक है, इंडिया फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज है। मसाली जो है इंडिया फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज है। बिटवीन October 9 to 11, 2022, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड गुजरात ड्यूरिंग दिस विजिट मोधेरा, ठीक है, वाज डिक्लेयर एज मुझे मसाली है ना, इंडिया फर्स्ट बॉर्डर विलेज है, बॉर्डर सोलर विलेज है, याद रखना। एंड 2022 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड गुजरात ड्यूरिंग दिस विजिट मोधेरा वाज डिक्लेयर एज इंडिया फर्स्ट 24/7 पावर्ड विलेज, ठीक है, मोधेरा जो गुजरात का था ना, गुजरात का था, ये जो है डिक्लेयर एज फर्स्ट 24/7, ठीक है, सोलर पावर्ड विलेज था। लेकिन की फैक्ट्स क्या है जिसको बॉर्डर विलेज के बारे में, मसाली वाज डिक्लेयर एज इंडिया फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज। मसाली जो है बॉर्डर विलेज की बात कर रहा है, गुजरात में ही बात कर रहा है। दिस विलेज लोकेटेड एन सुईगाम तालुका बनसकांठा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में है ये, ठीक है, बॉर्डर वाला है। इट इज नोटेबल दैट मसाली इज गुजरात सेकंड सोलर विलेज आफ्टर मोधेरा, मतलब मोधेरा के बाद सेकंड वाला है इंडिया, बॉर्डर वाला, लेकिन गुजरात का सेकंड है। इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम, कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम बताइए भाई, इसमें तो बस कुछ ही इंपॉर्टेंट होता है जहाँ क्वेश्चन पूछता है, और सब तो फालतू ऑप्शन इसमें दिए रहते हैं, तो पढ़ते पढ़ते एक्सपीरियंस हो जाता है यार, ठीक है, ऐसे इसलिए हम लोग बोल देते हैं आराम से, ठीक। इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम वाज इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है, लोकसभा स्पीकर बिरला। म्यूजियम वाज इनॉग्रेटेड एट ओपी जिंदल, देखिए इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, एट ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में, ठीक है, सोनीपत हरियाणा में इसको लॉन्च बनाया गया है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। इट वाज इनॉग्रेटेड टू मार्क द हिस्टोरिक ओकेजन ऑफ द 75th एनिवर्सरी ऑफ द एडॉप्शन ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब 75 ईयर पूरा हो गए थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किए हुए, तो इसलिए है ना यहाँ पे बना दिया था, ठीक है, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत में इनॉग्रेट कर दिया था इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम, ठीक है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। Notably, Constitution Academy and the Rights and Freedom Museum has also been established at OP Jindal Global University. A Constitution Academy and Rights and Freedom Museum has also been established at OP Jindal Global University. The Constitution Museum will serve as a major center for understanding India's Constitution. मतलब ये जो म्यूजियम है ना, ये सर्व करेगी मेजर सेंटर फॉर अंडरस्टैंडिंग इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। इट इंक्लूड्स several sections dedicated to each part of the constitution and its significance. It includes several sections dedicated to each part of the constitution and its significance. While the museum houses a wealth of historical material related to the constitution making, it is not merely a collection of the documents depicting events prior to 26 November 1949. मतलब बहुत सारा wealth रखी है historical material का related to the constitution museum. The selection, curation and organized presentation of the material in the museum and academy have been carried out by the Anchita B. Nair, head of the center of the museum. Samvid, India's first robotic tour guide. Samvid जो है इंडिया फर्स्ट रोबोटिक टूर गाइड, याद रखना, इंडिया फर्स्ट रोबोटिक टूर गाइड है समविद, ठीक। In November 2024, during the inauguration of the India's first Constitution Museum, okay, country's first museum tour guide robot was also unveiled. This robotic tour guide has been named Samvid, robotic guide है Samvid, ठीक। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, ये भी बहुत पूछता था पहले यार, मेंस का भी टॉपिक है नेचुरल फार्मिंग। देखिए
Union cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi approved the launch of the National Mission on Natural Farming. This scheme has been launched as an independent centrally sponsored scheme. क्या centrally sponsored scheme है ये National Mission on Natural Farming? It is being implemented under the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. Ministry किसके अंदर है? Ministry of Agriculture and Farmer Welfare के ठीक. Over the next 2 years, the mission will be implemented in 15,000 clusters of the Gram Panchayat that are willing to adopt natural farming. The initiative aims to reach 1 crore farmers and bring 7.5 lakh hectares under natural farming. Additionally, about 1,000 bio-input resources center will be set up on need. Additionally, 1,000 bio-inputs resource center will be set up based on need. Farmers will be able to easily obtain ready-to-use bio-inputs from these centers. Under the mission, around 2,000 models demonstration farms are being established for natural farming. Namo Drone Didi scheme. Namo Drone Didi scheme. India the second largest fertilizer consumer and third largest producer. क्या बोल रहा है इंडिया? इंडिया नमो ड्रोन दीदी स्कीम. इंडिया द सेकंड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कंज्यूमर एंड थर्ड, देखिए सेकंड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कंज्यूमर है एंड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. Still imports heavily due to limited natural resources. Under Atmanirbhar Bharat, the government revived plants, set up new units and developed nano fertilizer like nano urea developed किया है and nano DAP. To spread these efficiently, the Nano Drone Didi scheme, ये नमो ड्रोन दीदी स्कीम प्रमोट्स एग्रीकल्चर ड्रोन प्रमोट कर रही है. इनेबलिंग ऑटोमेटेड टाइम सेविंग एंड एफिशिएंट फर्टिलाइजर यूज. ठीक, की प्रोजेक्ट की फैक्ट्स क्या इसके देखिए. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इश्यूड द ऑपरेशनल गाइडलाइंस. ठीक है, फॉर द नमो ड्रोन दीदी. कौन लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इश्यूड द ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर द नमो ड्रोन दीदी स्कीम. ठीक है, याद रखना. ये मतलब बहुत से लोग इससे हमारे मीटी को मार देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को मार देंगे, लेकिन ये नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है ये. Earlier on 20 नवंबर 2023 the Union Cabinet had approved the scheme. ये यूनियन कैबिनेट जो है इसको अप्रूव कर दिए. ठीक है, ये हो गया. इन द कंटेस्ट 30 नवंबर 2023 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन. क्या लॉन्च किया? प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन. इट इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम. ठीक, अंडर द स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडिंग ड्रोन्स टू 15,000 सेलेक्टेड वुमेन. ठीक है, क्या लॉन्च किए थे? लॉन्च प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र. This is a central sector scheme. Under this scheme, government of India is providing drones to 15,000 selected women. Self-help group को provide कर रही है drones. ठीक है, for spraying the fertilizer. These drones are rented out to farmers for agriculture. For मतलब rent दिया जाएगा farmers को. The drones are being used for spraying nano fertilizer and pesticides in fields. नैनो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को छीटा जाएगा. अभी देखिए हम लोग तो हाथ से मैनुअली इसको छीटते हैं ना, बाद में देखना ड्रोन हर खेत में होगा, बिल्डिंग में. ठीक है, तो फॉरेन कंट्री में ड्रोन ही यूज होता है, जिससे जो है ह्यूमन के हेल्थ में इफेक्ट नहीं पड़ता है. ठीक है, तो याद रखना घर घर में ड्रोन होगा. ड्रोन्स आर बीइंग यूज्ड फॉर स्प्रेइंग नैनो फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स इन द फील्ड. आउट ऑफ द टोटल 15,000 ड्रोन्स, द फर्स्ट 500 drones are being provided by fertilizer company. The remaining 14,500 drones will be made available in the next 2 years through central assistance. The total cost of the drone along with the accessory is about 10 lakh यार. एक ड्रोन का यार, वन ड्रोन का कॉस्ट यार 10 लाख भाई. ठीक है, 10 लाख मतलब कॉस्टली है. ठीक है, ये हो गया. वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप विल रिसीव 80% ऑफ द कॉस्ट अप टू 8 लाख रुपये आज सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 80% हेल्प कर रही है यार, मतलब आपको 2 लाख के अराउंड देना पड़ेगा. क्लियरली अंडर दिस स्कीम रूरल वुमेन आर बीइंग ट्रेंड इन ड्रोन ऑपरेशंस एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ड्रोन दीदी. ठीक है, उनको जो वुमेन होंगी ना उनको इस ड्रोन का ट्रेनिंग दिया जाएगा, उनको बोला जाएगा ड्रोन दीदी. ठीक है, on 11 March 2024 the prime minister handed over 1,000 namo drone didis to their drones. ठीक है, 1,000 नमो ड्रोन दीदीज को उनका ड्रोन दिया गया था. पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम. ठीक है, क्या है? पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम. Recently on 2024 the union cabinet chaired by the prime minister Narendra Modi has approved PM Vidya Lakshmi, a new central sector scheme that seeks to provide financial support to meritorious students so that फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट डू नॉट प्रिवेंट एनीवन फ्रॉम परस्यूइंग हायर स्टडी. मतलब वही विद्या लक्ष्मी मतलब स्कॉलरशिप देंगे. ठीक है, सपोर्ट देंगे मेरिटोरियस स्टूडेंट को जो जीनियस है. पीएम विद्या लक्ष्मी इज डिजाइन टू, यहाँ पे याद रखना क्या देंगे? सपोर्ट टू मेरिटोरियस स्टूडेंट टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स डू नॉट प्रिवेंट एनीवन फ्रॉम परस्यूइंग हायर स्टडी. पीएम विद्या लक्ष्मी इज डिजाइन टू प्रोवाइड कोलेटरल फ्री एंड गारंटीड फ्री लोन. मतलब कोलेटरल मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं देना पड़ेगा
ठीक है। एंड गारंटी फ्री लोन्स अप टू 7.5 लाख आपको मिलेगा। कब तक कितना? 7.5 लाख रुपए मिलेगा किसके थ्रू? विद्या लक्ष्मी स्कीम के थ्रू टू स्टूडेंट्स हु गेन एडमिशन टू, इनको मिलेगा हु गेन एडमिशन टू हाई क्वालिटी, मतलब क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हाई क्वालिटी जो हायर स्टैंडर्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे एडमिशन लेंगे तो आपको ये लोन मिलेगा लगभग 7.5 लाख रुपए। ठीक है, ये हो गया। Establishment of the 3 AI centers of excellence, ठीक है, establishment of 3 AI centers of excellence, ठीक। तो ये बनेगा, देखिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 AI सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, मतलब ये भी नंबर याद कर लेना यार, क्योंकि पूछ लेते हैं वो, सही बात है बता रहा हूँ, पूछते हैं तो पूछते हैं। AI का इसमें बहुत बड़ा बवाल चल रहा है ना, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है, तो इसमें पूछते जहाँ जहाँ AI देखिए उस पर क्वेश्चन बनता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। 2024 में यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द 3 AI सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। दीज सेंटर्स विल फोकस ऑन हेल्थ केयर, किस पे फोकस करेंगे? हेल्थ केयर पे, एग्रीकल्चर पे, सस्टेनेबल सिटीज, किस पे? एंड सस्टेनेबल सिटीज पे फोकस करेंगे ये, ठीक है ना। द COE will be led by top academic institution in collaboration with industry partners and startup. Healthcare sector AI COE to be led by IIT Delhi and AIIMS New Delhi. Agriculture sector AI COE to be led by IIT Ropal. Sustainable cities sector AI COE to be led by IIT Kanpur. Yeah. Government of India has approved a total financial outlay of 990 crore for establishing these 3 AI COE covering the period of फाइनेंशियल ईयर 2023, ठीक है, 2024 से 28 तक ये रहेगा, ठीक है, ये मिशन रहेगा। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ठीक। द यूनियन कैबिनेट डिजाइड बाय द प्राइम मिनिस्टर हैज अप्रूव्ड द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, देखो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल गुजरात, यहाँ पे अप्रूव कर दिया है लोथल गुजरात में। क्या बनाएंगे? नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाएंगे यहाँ पे। द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 2 फेजेज, प्रोजेक्ट होगा कंप्लीट होगा 2 फेजेज में। द कैबिनेट अकॉर्डेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर फेज 1B and phase 2 as per master plan by raising funds through voluntary resources contributions and their execution after raising funds. Construction of the Lighthouse Museum under phase 1B will be funded by Director General of the Lighthouse and Lightships. Phase 1A of the project is under implementation with more than 60% physical progress and is expected to be completed by 2025. ये बनेगा कहाँ? देखिए ये बस इतना याद रखिए जितना हाईलाइट किया हूँ। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? गुजरात में लोथल में बन रहा है, बस इतना याद। इससे ज़्यादा कुछ भी फालतू चीज़ मत याद रखना, कुछ भी याद मत रखना, जितना बोल रहा हूँ उतना, बस जितना हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन से ना उतना, रेड वाला तो मैं बस इंडिकेशन कर रहा हूँ कि ये लेस प्रोबेबिलिटी है बस, ठीक है। नहीं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको ग्रीन वाले को लिख लेना कहीं मन करेगा तो। इनागुरेशन ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स मुंबई में है, ठीक है, तो भी याद रखना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स मुंबई वाला, ठीक। The government of India envisions establishing India as the skill capital of the world. Yeah, India is the skill capital of the world by making its youth more employable and self-sustainable. In line with this vision, under the chairmanship of Prime Minister Modi ji, the Union Cabinet approved the proposal of the setup of the Indian Institute of Skills. ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल कहाँ रहेगा बताइए? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल कहाँ रहेगा? 3 लोकेशन में रहेगा, मुंबई में रहेगा, अहमदाबाद में रहेगा एंड कानपुर में रहेगा, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स 3 जगह रहेगा, कहाँ? मुंबई में रहेगा, अहमदाबाद में रहेगा एंड कानपुर में रहेगा ये। नोटेबली द आइडिया ऑफ एस्टेब्लिशिंग IIS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स इन इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर आफ्टर ही विजिट टू सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। In 2016 he laid the foundation stone of the first Indian Institute of Skills in कानपुर में बना था, ठीक है। फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल कहाँ था? कानपुर, उत्तर प्रदेश में। ये फैक्ट्स टू रिमेंबर कौन कौन देखिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स मुंबई में इनॉग्रेट किए थे। कहाँ पे? मुंबई में है, अहमदाबाद में, कानपुर में, 3 जगह इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स है। तो मुंबई में इनॉग्रेट किया था, ठीक है। द इंस्टीट्यूशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द PPP मॉडल से एस्टैब्लिश हुए थे, ठीक। इट वाज सेट अप थ्रू अ पार्टनरशिप बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इट वाज सेट अप थ्रू अ पार्टनरशिप बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड टाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, ठीक है। इट वाज सेट अप थ्रू अ partnership between Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, and Tata India Institute of Skills and Tata Indian Institute of Skills, IIS। इसके पार्टनरशिप बना मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, IIS। द मुंबई IIS हैज बीन एस्टैब्लिश्ड ऑन अ 4 एकड़ कैंपस, ये 4 एकड़ कैंपस में एस्टैब्लिश हुआ है, ठीक है, मुंबई वाला, अंडर द नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मुंबई। Objective of this institute is to create a workforce equipped with advanced technology and practical training
मतलब आपको एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू इक्विप किया जाएगा एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिलेगी, रेडी टू बी डिप्लॉयड इन इंडस्ट्री सो दैट यू कैन बी एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रीज इजिली, ठीक है। अब देखना क्रूज भारत मिशन, क्रूज भारत मिशन क्या बोल रहा है। यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंदा सोनोवाल, क्रूज भारत मिशन याद रख लेना। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स लॉन्च द क्रूज भारत मिशन, लॉन्च द क्रूज भारत मिशन फ्रॉम द मुंबई पोर्ट से, ठीक है। टू बूस्ट क्रूज टूरिज्म, मतलब टू बूस्ट क्रूज टूरिज्म इन इंडिया बाय डबलिंग क्रूज पैसेंजर ट्रैफिक विद इन 5 ईयर, डबलिंग क्रूज पैसेंजर ट्रैफिक विद इन 5 ईयर्स, मतलब बाय 2029 तक इसको बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखना की हाईलाइट्स क्या है। द मिशन एम्स टू क्रिएट 4 लाख जॉब इन इंडिया क्रूज सेक्टर, मतलब क्रिएट करेंगे कितना 4 लाख जॉब्स। अच्छा ये तो पहले हाईलाइट कर दिए यार, मतलब इसे ब्यूटी है क्या है, इस घटना चक्र की ब्यूटी है कि वो पहले हाईलाइट कर दिए हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखिए यहाँ पर 2 फेजेज में बना था ये वाला मैरीटाइम हेरिटेज, खुद हाईलाइट कर दिए भाई, लेकिन मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसको हाईलाइट करूंगा, ठीक है। इनको करने दीजिए भाई। अब नंबर ये सब क्या इंपॉर्टेंट, 1B ये सब फेज 2 क्या है, ये सब फालतू चीज, ठीक है ना। तो फालतू नहीं, जितना एग्जाम में आता है बस उतना बता रहा हूँ, ठीक। क्रूज सर्किट विल हाईलाइट्स इंडियाज कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड नेचुरल हेरिटेज प्रमोटिंग देम ग्लोबली। द क्रूज भारत मिशन विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 3 फेजेज, 3 फेजेज में कंप्लीट होगा, कवरिंग 3 मेन सेगमेंट। द मिशन टारगेट्स ओवर 1.5 million river cruise passengers across 500 किलोमीटर of operational waterway in India. Implementation of cruise भारत मिशन क्या है? Implementation of the cruise भारत मिशन. Phase of the mission focus on the 3 cruise segment. ठीक है, phase of the mission focus on the 3 cruise segment. ठीक है, phase 1 है या phase 2 है। मॉडर्न क्या करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को, एक्टिव क्रूज टर्मिनल्स को एक्टिव करेंगे, इंटीग्रेट क्रूज सर्विस अक्रॉस द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ग्रोथ टारगेट्स क्या है, सब फालतू चीज यार याद नहीं होगा भाई, नहीं होगा, ठीक है। यहाँ आगे बढ़िए। 5 न्यू क्लासिकल लैंग्वेज, ये तो इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है भाई, ये थीम है, बस याद नहीं करना है। यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर हैज अप्रूव्ड टू कन्फर द स्टेटस ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेज, किनको टेक्निक में बता रहा हूँ, पहले ये याद कर लीजिए कौन है। MBA ये टेक्निक में बता रहा हूँ कौन का, देखिए MBA ये तो पढ़ा होगा, डिग्री है। उसके बाद PP MBA PP, अब देखिए MBA मतलब M कहाँ पे मराठी, B से कहाँ बंगाली, A से कहाँ पे आसामी, PP मतलब प्राकृत एंड पाली, बस वही है। MBA से मराठी, बंगाली, आसामी, प्राकृत, पाली, बस ऐसे याद कर लीजिए ऐसे ही, ठीक है। इसको भूलना नहीं है, 5 लैंग्वेज है MBA PP, ठीक है। मराठी, बंगाली, आसामी, ठीक है, प्राकृत, पाली। ये तो बुद्धिज्म वाला लैंग्वेज है, P वाला, P वाला बुद्धिज्म वाला लैंग्वेज था ना, इसे याद रखना। द क्लासिकल लैंग्वेज सर्व एज द कस्टोडियन ऑफ द भारत प्रोफाउंड एंड एंशिएंट कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। इसको तो याद कर लेना यार, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इसको भूलना मत, ठीक है। To profound and ancient cultural heritage embodying the essence of each community, historical and cultural milestone. The government of India decided to create a new category of language as a classical language on 12 October 2004 में इसने डिसाइड किया था, ठीक है। 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज को देने की बात बोली थी। अब पहला इसमें किसको दिया गया था, 2004 में तमिल को क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था एंड सेटिंग फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर द स्टेटस ऑफ द हाई लैंग्वेज। क्राइटेरिया याद करना भाई, क्राइटेरिया भूलना मत। क्या क्राइटेरिया है, हाई एंटिक्विटी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाई एंटिक्विटी होना चाहिए, और बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, लिंग्विस्टिक्स एक्सपर्ट करना चाहिए। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज, हाई एंटिक्विटी मतलब ओल्डेस्ट होना चाहिए, ठीक है। हाई एंटिक्विटी ऑफ इट्स अर्ली टेस्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर थाउजेंड्स ईयर होना चाहिए, ओवर थाउजेंड्स ईयर होना चाहिए। अ बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर टेक्स्ट विच इज कंसिडर्ड अ वैल्यूएबल हेरिटेज बाय जनरेशन ऑफ स्पीकर, मतलब जो जनरेशन ऑफ स्पीकर्स है ना, जो बोलते हैं इसको ये इसको वैल्यूएबल समझते हैं, ठीक है, इसको वैल्यूएबल समझते हैं। तो बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर होना चाहिए, जो टेस्ट हो इसका टेस्ट में लिखा होना चाहिए, ये बोल रहे हैं इसमें। ये संस्कृत वो भी लिखा रहता है। The literary tradition must be original and not borrowed from another speech community, मतलब जो literary tradition है ना लिखने वाला, उसको कहीं ओरिजिनल होना चाहिए, कहीं से borrowed नहीं होना चाहिए। A linguistic expert committee was constituted by the Ministry of Culture under Sahitya Akademi in November 2004 to examine the proposed in language for the status of classical language, ठीक है। Government of India has conferred status of the classical language to following language before these 5 language। किसको मिला था पहले देखिए 6 लैंग्वेज थे उसके पहले, ठीक है। अब 5 का और हो गया, 6 5 11 हो गए हैं। इसको याद कर लीजिएगा। तमिल को कब मिला था,
तमिल को कब मिला था? 2004 में। ईयर डेट याद नहीं है लेकिन ईयर याद, थोड़ा याद रखना, ईयर पूछ सकता है, ठीक है। तो तमिल को पहले कब मिला था? तमिल को 2004 में मिला था। ऐसे याद कीजिए, मैं बता रहा हूँ टेक्निक यार। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये आपको मैप याद होगा ना। इंडिया का मैप मान लीजिए ऐसे है, ठीक है। इंडिया का मैप हो गया, ठीक है, ठीक है। इंडिया का मैप मान लीजिए यही है, ठीक है। अब साउथ में जाइए, साउथ में 4 स्टेट मान लीजिए, गिन लीजिए साउथ में कौन कौन स्टेट है। तमिलनाडु, साउथ में कौन है? तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु है। ये पे तमिल को, तमिल लैंग्वेज को दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे कौन है? मलयालम, ठीक है, मलयालम है, इसको भी दिया गया था, ठीक है, तो इसको भी दिया। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश वाले रीजन में कौन है? तेलुगु, तेलुगु दिया गया, ठीक है। ये हो गया, 3 हो गया ना। और यहाँ उड़ीसा में देखिए उड़ीसी, उड़ीसी को भी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर नॉर्थ में जाइए, संस्कृत, संस्कृत को दिया गया है। कितने हो गए? ऐप कन्नडा, ऐप कर्नाटका है ना, कन्नडा, कन्नडा, ठीक है, कन्नडा। कितने हो गए? 3 इधर हो गए, देखिए 4 स्टेट साउथ के हैं, 1 1 2 3 4, 4 स्टेट साउथ हो गए ना। और दो ऊपर संस्कृत है ना, उड़ीसा, ठीक है। तो ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए तमिल, तमिल को तो 4 में दिया गया था, ठीक, कब दिया गया था? 2004 में दिया गया था तमिल लैंग्वेज को, पहली बार इसी को दिया गया था, ठीक है, पहली बार इसी को दिया गया था। और लास्ट में उड़िया को दिया गया था, ठीक है। पहली बार तमिल को दिया गया था, लास्ट में उड़िया को दिया गया था कब? 2014 में, मार्च 2014 में दिया गया था। तमिल के बाद संस्कृत को दिया गया था 2005 में, और 5 में संस्कृत को दिया गया था। और संस्कृत के बाद तेलुगु यानी कन्नडा को दिया गया था 2008 में, दोनों को साथ में दिया गया था, ठीक है। इसको दोनों को साथ में दिया गया था, ठीक। मलयालम को थोड़ा लेट दिया गया था 2013 में, केरला का लैंग्वेज है ना, 2013 में मलयालम को दिया गया था, ठीक। मलयालम को 2013 में दिया गया था, ठीक। ये इंपॉर्टेंट हो गया। हम यहाँ पे देखिए, लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी अंडर साहित्य अकादमी इन मीटिंग anonymously revise the criteria. साहित्य अकादमी हैज बीन अपॉइंटेड एज ए नोडल एजेंसी फॉर द एलईसी। हाई एंटिक्विटी, इसने क्या बोला है? रिवाइज कर दिया क्राइटेरिया, क्या कर दिया? रिवाइज द क्राइटेरिया। अब क्या बोला है इसमें? हाई एंटिक्विटी ऑफ इट्स अर्ली टेस्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर ए पीरियड ऑफ 1500 to 2000 हिस्ट्री कर दिया, ठीक है। इसने क्या कर दिया? 2000 कर दिया। पहले जो है इससे पुराना बोल रहे थे कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? थाउजेंड्स ऑफ ईयर होना चाहिए। हाई एंटिक्विटी ऑफ इट्स अर्ली टेस्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर ए पीरियड ऑफ 1500 to 2000 ईयर होना चाहिए इसका। अब बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर टेक्स्ट विच इज कंसीडर हेरिटेज बाय जनरेशन ऑफ स्पीकर होना चाहिए, मतलब जो कोई एंशिएंट लिटरेचर होना चाहिए, बस इतना जानिए, ठीक है। कंसीडर बाय हेरिटेज बाय जनरेशन ऑफ स्पीकर होना चाहिए। अब नॉलेज टेक्स्ट स्पेशली प्रोज टेक्स्ट इन एडिशन टू पोएट्री। अब क्या होना चाहिए? देखिए, नॉलेज टेक्स्ट होना चाहिए, स्पेशली प्रोज टेक्स्ट इन एडिशन टू पोएट्री होना चाहिए, एपिग्राफी होना चाहिए, प्रोज टेक्स्ट होना चाहिए, एंड स्क्रिप्शनल एविडेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्रिप्शनल एविडेंस का भी होना चाहिए। और क्या बोल रहा है? द क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर कुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स करेंट फॉर्म और कुड बी डिसकंटिन्यूअस विद लेटर फॉर्म्स ऑफ आउटपुट। क्या बोल रहा है? जो क्लासिकल लैंग्वेज है ना, लिटरेचर कुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स करेंट फॉर्म और कुड बी डिसकंटिन्यूअस विद लेटर फॉर्म्स विद आउटपुट, मतलब ये अलग थोड़ा हो सकते हैं अपने पिछले वाले से, ठीक है, ये अलग हो सकते हैं, या पिछला वाला भी इसके प्रेजेंट वाले से अलग हो सकता है, ठीक है, माना जाएगा उसको। क्या बोल रहा था? क्लासिकल लैंग्वेज and literature could be distinct from its current form or could be discontinuous with later forms of its output। मतलब जो पुराने हैं उससे थोड़ा अलग भी हो गया ना, तभी उसको क्लासिकल लैंग्वेज माना जाएगा। जिसका थोड़ा बहुत मॉडिफाइड वर्जन होगा उसको भी मान सकते हैं क्लासिकल लैंग्वेज, मतलब अपने ओरिजिनल से, मतलब ओरिजिनल से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। ये इसमें बात बोल रही है। द कमेटी आल्सो रिकमेंडेड फॉलोइंग लैंग्वेज टू बी फुलफिलिंग रिवाइज्ड क्राइटेरिया टू बी कंसीडर्ड एज क्लासिकल लैंग्वेज। तो वही है, एमबीए वाला कौन है? मराठी है, मराठी के बाद एमबीए, बी से बंगाली है, ए से आसामीज है, और डबल पी पाली है, एंड प्राकृत है। तो ये लैंग्वेज जो है इसमें इंक्लूड हुए, ठीक है। अब देखना, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2024 का बोल रहा है, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2024, क्या बोल रहा है इसमें? अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स का लॉन्च फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2020 बाय द प्रजा फाउंडेशन, द अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स, ठीक है, has emerged as an important tool, has emerged as an important tool for policy makers. Since its launch, the index has triggered extensive discussion on urban governance reform from the central government to city government, paving the way for several fundamental reforms in India city. ठीक है, क्या रिमेंबर करना है इसमें? प्रजा फाउंडेशन रिलीज द अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2024. दिस इज द सेकंड एडिशन ऑफ द इंडेक्स. अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स रिकॉर्डेड एन ओवरऑल एवरेज स्कोर ऑफ 39 out of 100 across the 28 state, 2 union territory and national capital territory. The union governance index टॉप 5 स्टेट कौन कौन है? केरला है, ठीक है, यूनियन गवर्नेंस इंडेक्स कौन कौन है? केरला है, ठीक है, केरला है, ठीक, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। भाई क्या पूछे इसमें?
यूनियन गवर्नेंस इंडेक्स टॉप 5 स्टेट, ठीक है। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप 5 कौन है? पहले तो केरला आएगा, ठीक है। केरला जो पहले आएगा इसमें, ठीक है ना। केरला इसमें पहले आएगा अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में, ठीक। मतलब कहीं भी है केरला इज परफॉर्मिंग वेल, ठीक। उसका उड़ीसा आ रहा है। फिर अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2024 बिहार और उत्तर प्रदेश के बारे में क्या बोल रहा है? बिहार रैंक 15 विद स्कोर 41 और उत्तर प्रदेश रैंक 16। यार उत्तर प्रदेश कंडीशन मतलब खराब है इसमें अर्बन गवर्नेंस के मामले में। इस मामले में अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स बोल रहा है, ठीक है ना। ये हो गया 16th है। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स बॉटम 5 स्टेट कौन? नागालैंड, मणिपुर, मतलब नॉर्थ ईस्ट वाला। चंडीगढ़ भी है, खराब है, बॉटम में है। पंजाब भी है। एंड उत्तर प्रदेश रैंकिंग 4 की थीम ऑफ द यूजीआई एम्पावर्ड सिटी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड लेजिस्लेचर 13th है। एम्पावर्ड सिटी एडमिनिस्ट्रेशन 24 है। एम्पावर्ड सिटीजन 24 है। फिजिकल एम्पावरमेंट 60 है, ठीक है। अब यहाँ पे दे रहा है, क्या बोल रहा है? अप्रूवल ऑफ द वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल। इसमें बहुत बवाल हुआ था लेकिन अप्रूव हो गया था बाद में, ठीक है। अभी भी चल रहा है, इस पर डिस्कशन चल रहा है। बिल आया था इस पे। क्या बोल रहा है? अप्रूवल ऑफ द वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल, बताइए इसके बारे में। On 18 September 2024, the Union Cabinet approved the proposal of the One Nation One Election, ठीक है। यूनियन कैबिनेट जो है अप्रूव कर दिया था, तो प्रपोजल फॉर वन नेशन वन इलेक्शन को अप्रूव कर दिया था, ठीक है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर वन नेशन वन इलेक्शन। The proposal was based on the recommendation of the high-level committee chaired by the former president रामनाथ कोविंद। इसको याद रखना, वन नेशन वन इलेक्शन या किसके द्वारा चेयर्ड बाय? हाई लेवल कमेटी था, चेयर्ड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा इसको चेयर किया गया था। विच सबमिटेड इस रिपोर्ट इन 2024। अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल, इलेक्शन इन द कंट्री विल बी कंडक्टेड इन 2 फेजेज। मतलब इलेक्शन इन द कंट्री क्या होगी? कंडक्ट हो जाएगी 2 फेज में। फर्स्ट फेज में क्या होगी देखिए, और सेकंड फेज में क्या होगी? फर्स्ट फेज में क्या होगी? लोकसभा एंड ऑल स्टेट असेंबली इलेक्शन विल बी हेल्ड। और सेकंड स्टेज में क्या होगी? विद इन 100 days ऑफ द फर्स्ट फेज, ठीक है, इलेक्शन टू बी लोकल बॉडी विल बी कंडक्टेड। मतलब इसके साथ ही लोकल बॉडी से भी इसके 100 days के अंदर इसको कंडक्ट किया जाएगा, ये बोल रहा है इसमें। To enable implementation of simultaneous election, 2 type of amendment bill are to be introduced in Parliament. 2 type of amendment bill हो introduce किए हैं, one constitutional amendment bill, another for consequential amendments in the laws of union territory with legislation। मतलब यूनियन टेरिटरी और लेजिस्लेशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और इस बिल में भी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक। For the first phase of simultaneous elections, amendment to Article 83, duration of the House of Parliament बोला है, and Article 173, duration of the state legislature will be made along with the insertion of the Article 82A. These amendments will not require ratification by the state। जो amendment होगा ना, इसमें जो है स्टेट का कोई जो है रेटिफिकेशन जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह जो है सेंट्रल लिस्ट में आता है, ठीक है ना। इलेक्शन उसके मतलब मेथड के बारे में, तो यह जो अमेंडमेंट होगा तो सेंट्रल लेवल पे, तो उसमें स्टेट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, कोई रेटिफिकेशन जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर द सेकंड फेज अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू मैंडेट द इलेक्शन फॉर द सेकंड फेज अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू मैंडेट दैट इलेक्शन टू म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत बी कंडक्टेड विद 100 days। कितने दिन? विद 100 days के अंदर होगा, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत इलेक्शन जो कंडक्ट होगा 100 days होगा, आप द लोकसभा एंड स्टेट इलेक्शंस के बाद, ठीक है, 100 days के अंदर होगा, ठीक। दीज अमेंडमेंट्स मस्ट कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर। मतलब इससे कंप्लाई करनी चाहिए, आर्टिकल 368 से कंप्लाई करना चाहिए, ठीक है ना। इन दिस रिगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल 129th अमेंडमेंट बिल 2024 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा इन 2024 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, एंड वाज रिफर टू द, ठीक है, एंड वाज रिफर टू द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक। वन नेशन वन इलेक्शन हाई लेवल कमेटी क्या था, कब बना, इसमें कितने 8 मेंबर थे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट किया 2023 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इसमें चेयरपर्सन थे। मिनिस्टर और मेंबर कौन थे? अमित शाह थे, यूनियन मिनिस्टर थे, मिनिस्टर कोऑपरेशन थे, फार्मर चेयरमैन थे, और इसमें मतलब ये सब याद नहीं हुआ लेकिन याद रखना बस। एंड सेक्रेटरी कौन थे? डॉक्टर नितिन चंद्र चीफ सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के, ठीक है। और सबमिट कब किया था? रिपोर्ट 2024 में सबमिट किया था। विकसित कृषि संकल्प अभियान, ठीक है, विकसित कृषि संकल्प अभियान, ठीक, याद रखना। यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान लेड द विकसित कृषि संकल्प अभियान, a 15-day national campaign launched on May 29 from Puri, Odisha।
द कैंपेन मैं उड़ीसा शुरू किया था, बस इतना याद रखिए, कृषि विकास संकल्प अभियान उड़ीसा शुरू किया गया है। द कैंपेन एम्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन साइंटिफिक एग्रीकल्चर रिसर्च एंड ग्रासरूट फार्मिंग प्रैक्टिसेज टारगेटिंग ओवर 1.5 crore farmers across 700 districts. The initiative supported by 1,600 agriculture scientists, 2,170 interdisciplinary terms. Campaign highlight during the VKSA विकसित कृषि संकल्प अभियान। Agriculture Minister visited several states including Jammu and Kashmir, Uttar Pradesh, Haryana, Bihar star. In Motihari, Bihar, the minister announced 6 crore worth of agriculture projects at the local Krishi Vigyan Kendra. The minister visited the ICAR, Indian Institute of Millet Research, ICMR, ठीक है, Hyderabad, Telangana. He laid the foundation stone for Global Center for Excellence in Millet, reinforcing the India's leadership in nutri cereal innovation, ठीक है ना, ये हो गया। The campaign has reached 87.8 lakh farmers across 5,480 villages. A total of 46,181 field village visits had been conducted by the 2,170 dedicated teams between 29 May and 8 June. NFSU and CFSL campus in रायपुर छत्तीसगढ़, ये भी इंपॉर्टेंट है यार, याद रखना, भूलना नहीं, क्योंकि जो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की बात की गई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल, ठीक है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस की बात करिए, ठीक है। नेशनल NFSU एंड CFSL कैंपस इन रायपुर छत्तीसगढ़ रिसेंटली, ठीक, जून 2021-25 यूनियन मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन, ठीक है, श्री अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ, कौन सा यहाँ पे लेड किया था, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को यहाँ पे लेड किया था, ठीक है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को यहाँ पे लेड किया था, एंड नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को लेड किया था, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ठीक है, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को यहाँ पे स्टैब्लिश किया था, कैंपस इन रायपुर छत्तीसगढ़ में। याद रखना, जो यूनिवर्सिटी है ना फॉरेंसिक साइंस की और जो लेबोरेटरी है फॉरेंसिक साइंस की, दोनों जो है बस याद रखना, यूनिवर्सिटी फॉरेंसिक साइंस की एंड लेबोरेटरी फॉरेंसिक साइंस की, ठीक है, बस दो चीज कहाँ पे हो रही है, रायपुर छत्तीसगढ़ में। आपको कंफ्यूज करके जरूर झारखंड देगा और जो है बेंगलुरु देगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, छत्तीसगढ़ मार के आना है, ठीक है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी एंड बस यूनिवर्सिटी फॉरेंसिक साइंस की एंड लेबोरेटरी फॉरेंसिक साइंस की, ठीक है, एक नेशनल फॉरेंसिक साइंस है यूनिवर्सिटी और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, ठीक, दोनों को याद रखना, यहाँ पे नेशनल है, यहाँ पे सेंट्रल है, बस ठीक। तब ये इतने कंफ्यूज नहीं होना, यूनिवर्सिटी के याद रखना, फॉरेंसिक साइंस की और फॉरेंसिक साइंस की लेबोरेटरी याद रखना, छत्तीसगढ़ में है, रायपुर छत्तीसगढ़ में, बस। एंड वर्चुअली इनॉग्रेटेड द टेम्पोररी कैंपस ऑफ NFSU रायपुर, ठीक, मैंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया था टेम्पोररी कैंपस ऑफ NFSU नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, ठीक है, कहाँ पे, रायपुर में, ठीक ना। along with NFSU and CFSL, ठीक है, सेंटर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एंड नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, थ्री हब इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन छत्तीसगढ़ में, ठीक है, वाज लॉन्च छत्तीसगढ़ में, ठीक है। NFSU campus is being established at a cost of 145 crore. Okay? NFSU campus is being established at a cost of 145 crore and CFSL facility 123 crore. Where total investment is 258 crore. Since the establishment of the NFSU, 16 campuses have been initiated in a very short time. 16 campuses जो है initiated हुई हैं in short time में, 7 of which are operational and 9 approved हो गई हैं, ठीक है। मोदी गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू एक्सपेंड NFSU टू 26 मेजर लोकेशन अक्रॉस द कंट्री। ये NFSU को इसने एक्सपेंड करने की बात बोल रही है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को, ठीक है, कितने ध्यान रखना भाई। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ठीक है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की बात बोल रहा है यहाँ पे, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 की बात कर रहा है, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन जून 2025 रिलीज द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, इसने रिलीज किया है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज किया है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 रिपोर्ट फॉर 2022-23 एंड 2023-24 रैंकिंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरी ऑन स्कूल एजुकेशन के लिए इन्होंने रिलीज किया, ठीक है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स किसके लिए, स्कूल एजुकेशन के लिए, बस इतना जानना है, कंफ्यूज मत होना, इसके लिए स्कूल एजुकेशन के लिए रिलीज किया, ठीक है।
Performance Grading Index PGI 2.0 is an evidence-based assessment tool used to evaluate the performance of the school education system across various states and union territory in India. It was originally launched in 2017 with the PGI 2.0 version aligned to the National Education Policy 2020 and Sustainable Development Goals. The PGI 2.0 is established by the Ministry of Education, Government of India. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया है। तो फ्रेमवर्क कवर 6 की डोमेन, जो फ्रेमवर्क है कवर करती है 6 की डोमेन्स को एंड कंप्राइजेस 73 इंडिकेटर्स, लर्निंग आउटकम्स, एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी, इक्विटी, गवर्नेंस, प्रोसेसेस, टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। States and union territory are scored on a scale of 1000 points and graded into 10 bands ranging from Daksh top and Akanchi 3 lowest था। ठीक है, Key trends from PGI 2.0 report, 2023-24. Chandigarh secured the highest score of 703 points, placing it to the Prachesta 1 category with a strong performance in infrastructure and governance. Meghalaya recorded the lowest score of 417 points, ranking in the Akanchi 3 band due to ongoing challenge in access and learning outcomes. No states or union territory achieved placement in the top 4 bands. The top 4 bands में कोई आया नहीं, Daksh, Utkarsh and 1, 2, 3. Indicating a need for significant system improvement. No state achieved at Daksh level in learning outcomes, highlighting persistent issues in the foundational literacy and numeracy. Bihar and Telangana made the most progress in access, especially among disadvantaged community, improving enrollment and retention rates. In the performance grading index 2.0, Gautam Budh Nagar, Noida was recognized as the only district in Uttar Pradesh to achieve the highly performing category in school education for the academy. ये तो मतलब अच्छा परफॉर्मेंस किया है। परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 में गौतम बुद्ध नगर जो है, इसको ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि पूछ लिया तो ये पूछ सकता है। गौतम बुद्ध नगर नोएडा का है, वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ओनली डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश टू अचीव हाई परफॉर्मिंग कैटेगरी इन स्कूल एजुकेशन फॉर एकेडमी ईयर 2023-24। गौतम बुद्ध नगर नोएडा was placed in purchased one category, 51 to 60% with a score of 309 out of 600, improving from 272 in the previous year। ठीक, गाजियाबाद क्या बोल रहा है? गाजियाबाद secured the 4th position। ठीक है, गाजियाबाद secured the 4th position among districts in state। झांसी जो है 299, वाराणसी जो है 292 were also recognized, with झांसी securing the 2nd position and Varanasi the 3rd। ठीक है, grades attained by state and union territory 2023-24। दक्ष में देखिए आपको 91% से 100% के बीच में होना चाहिए यार, भयानक है। अभी तो 51 to 61% के बीच में आया परचेस्ट 1, और 4 कैटेगरी में मतलब कोई आया ही नहीं है। बताइए, मतलब भयानक कंडीशन है यार इंडिया की। देखिए 4 कैटेगरी में कोई नहीं आया भाई। दक्ष में नहीं आया, उत्कर्ष में नहीं आया जो 81 से 90% के बीच में, अति उत्तम में कोई नहीं आया 71% से 80%, उत्तम में कोई नहीं आया 60% से 61% 70%, कोई नहीं है, नील है। बस इस एक में आया है यहाँ पे देखना। ठीक है, स्टेट इंडियन टेरिटरी में 51% टू 61%, मतलब परचेस्ट 1 में चंडीगढ़ आया है। ठीक है, और 31% परचेस्ट 3 में। अरे अच्छा, ये किस में आया था यार? परचेस्ट 1 में भी आया था गौतम बुद्ध नगर भी। ठीक है, सर इसमें दिया नहीं हुआ। ठीक है, 31% से 40% जो है, ठीक है 41% से, तो इसमें पंजाब, दिल्ली ये सब आए थे। ठीक है, और 21 से इसमें पुदुचेरी, हिमाचल प्रदेश सब थे। 11% 20% इसमें तेलंगाना थे। अब 10% मेघालय थे। कौन थे? मेघालय। ठीक है, पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ रिवराइन डॉल्फिन। ठीक है, पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ रिवराइन डॉल्फिन्स। ठीक, पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ रिवराइन डॉल्फिन्स। बताइए, पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ रिवराइन डॉल्फिन्स के बारे में बताना है। ठीक है ना, पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ रिवराइन डॉल्फिन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज द पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ रिवराइन डॉल्फिन। मतलब जो डॉल्फिन है ना, उसके पॉपुलेशन एस्टिमेट किया जाएगा, उसके बारे में बोला है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिलीज किया द रिजल्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट एवर कॉम्प्रहेंसिव पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ द गैंजेटिक एंड इंडस रिवर डॉल्फिन। मतलब जो गंगा में पाई जाती है और इंडस रिवर में पाई जाती है, उसके डॉल्फिन का उसमें एस्टिमेट को रिलीज किया है।
द सर्वे कंडक्टेड बिटवीन 2021 से 23 के बीच में प्रोवाइड्स क्रिटिकल इंसाइट्स इनटू द स्टेटस डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजर्वेटिव चैलेंज ऑफ दिस इंडेंजर्ड एक्वेटिक एनिमल्स। की फाइंडिंग्स ऑफ द डॉल्फिन सर्वे क्या है, बताइए। की फाइंडिंग्स ऑफ द डॉल्फिन सर्वे कंडक्टेड बाय द, किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था, डॉल्फिन सर्वे की बात कर रहा है। कंडक्टेड बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WIIA अंडर द यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, कवर्ड गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर बेसिन। कौन कौन बेसिन था, गंगा था, ब्रह्मपुत्र था, इंडस रिवर बेसिन था। अक्रॉस 28 रिवर बाय बोट्स, 30 बाय रोड। एस्टिमेटेड कितना है, 6327 गंजेटी डॉल्फिन है। रेंजेस 5977 से 6638, मतलब एस्टिमेट किया कि कितने डॉल्फिन है इन सारे रिवर में, 6327 डॉल्फिन है बस। फाउंड ओनली 3 इंडस रिवर डॉल्फिन इन द, फाउंड ओनली 3 इंडस रिवर डॉल्फिन इन द ब्यास रिवर पंजाब में, मतलब ब्यास रिवर में बस 3 ही डॉल्फिन थी, ठीक है। ओनली 3 डॉल्फिन थी ब्यास रिवर, बस इतना जानिए, इंपॉर्टेंट नहीं उतना कि 3 ही थी, 2 थी। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या, गंगा में कितनी, सबसे ज्यादा गंगा में थी, ये थोड़ा याद रखना यार। गंगा मेन स्ट्रीम में ज़्यादा थी, ठीक है, गंगा मेन स्ट्रीम में ज़्यादा थी। और ना एक बात और बता रहा हूँ कि जो इंडिया का एक्वेटिक एनिमल है ना, एक्वेटिक एनिमल क्या है इंडिया का, एक्वेटिक एनिमल क्या है इंडिया का, बताइए। डॉल्फिन है भाई, ये डॉल्फिन है, याद रखना, ठीक है। 2009 या 10 में शायद दिया गया था, ठीक है। गंगा को रिवर कब माना गया, 2008 में माना गया था, तो मतलब इसका होगा ना 8 के बाद 9 में दिया है, 2009 या 10 में इसको एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया था। गंगा में मेन रिवर में ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो गंजेटिक डॉल्फिन को क्या बोलते हैं, गंजेटिक डॉल्फिन बोलते हैं, जो कि इंडिया की एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है ना। एक्वेटिक मतलब पानी वाला होता है, वही वाला है, ठीक है। गंगा ट्रिब्यूटरी, गंगा ट्रिब्यूटरी कितनी है इसमें, इतना है, इतना इतना इतना, ये सब इंपॉर्टेंट है, बस ऊपर बात जानिए कि गंगा रिवर में ज़्यादा पाई जाती है, बस इससे ज़्यादा मत जानिए। आपको बस इतना पढ़ना, जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उससे ज़्यादा कुछ मत पढ़ना, आंख बंद करके बिलीव कीजिए यार, ठीक है। आएगा तो यहीं से आएगा, नहीं तो बाहर से आएगा ना, तो सब क्लियर डिफिकल्ट होगा। बिकॉज आई हैव आल्सो अपीयर्ड एग्जाम एंड क्लियर्ड आल्सो, ठीक ना। लास्ट ये इतना डिफिकल्ट था, 2024 का पेपर देख लीजिए ना, सबसे टफेस्ट पेपर माना जाता है UPPCS का, नहीं तब भी मैं क्लियर किया था प्री वाला, ठीक है, याद रखना। अभी तो मेंस का तो रिजल्ट बाकी है, लेकिन मैं दिया था तो क्लियर हुआ था, ठीक है। अभी 1 महीना हुआ मेंस का एग्जाम दिया हूँ, तो 1 महीने हुआ पढ़ाते हुए पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। तो मतलब चीज़ें बदलती रहती हैं। हाई नंबर ऑफ गंजेटिक डॉल्फिन इन उत्तर प्रदेश, लेकिन मेंस का एग्जाम देने बड़ी मजा आता है, आप लोग कभी देना, जो दिए होंगे बहुत से लोग, मजा तो आता है लिखने में यार, नहीं। मेंस का एग्जाम मैं लिख रहा था, जैसे लग रहा था किस दुनिया में, मतलब कुछ दिखाई नहीं देता, ना कुछ दिमाग में कुछ नहीं आता है, आपको बस लिखना लिखना, पेन नहीं रुकना चाहिए, सोचते रहिए उसी में लिखते। और क्या याद आता है माइंड में, जानते क्या याद आता है, जो रिवाइज किए रहेंगे वही याद आएगा, और कुछ नहीं याद आता भाई, रियलिटी यही है। इसलिए मैं बोलता रिवाइज कीजिए। अब प्री का एग्जाम देने जा रहा है ना, वहाँ पे आपको 50% चीज़ें याद आएंगी, आप 50% गेस मारेंगे आराम से। 3 ऑप्शन देंगे, 2-3 ऑप्शन देंगे, तो उसमें से आपको गेस मारना पड़ेगा, 2 आएगा, 1 ही नहीं आएगा, ऐसे होता है एग्जाम में। तो आपको टोटली डायनेमिक होना पड़ेगा, एकदम बिंदास रहना पड़ेगा, ठीक है। और पढ़े हुए रहेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, रिवाइज किए रहेंगे ना तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है। इसलिए मैं बोलता हूँ रिवाइज जो है, ये ब्रह्मास्त्र, ठीक है, रिवाइज करना एक ब्रह्मास्त्र, जो को बहुत हेल्प करेगी आपकी। सुदर्शन चक्र मान लीजिए, जो आपकी है S400 है, जो रिवीजन है, नाउन, उसको नाउन समझ लीजिए, नाउन के रूप में आपको S400 आपका रिवीजन, ठीक है। तो रिवाइज करिए बढ़िया से। हाईएस्ट नंबर आप देखना, हाईएस्ट नंबर ऑफ गंजेटिक प्लेन इन उत्तर प्रदेश, फॉलोड बाय, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे है गंजेटिक प्लेन, गंजेटिक डॉल्फिन कहाँ पे है, गंजेटिक डॉल्फिन उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा 2300 के अराउंड है, कितना है 2300 के अराउंड, फिर बिहार में है, फिर वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। लीगल प्रोटेक्शन देख रहा हूँ, 1 मिनट यहाँ पे आ गया है। लीगल प्रोटेक्शन क्या बोल रहा है, इंडेंजर्ड स्टेटस, ठीक है। इनको स्टेटस कौन सा मिला है गंजेटिक डॉल्फिन को, तो इंडेंजर्ड स्टेटस मिला है IUCN रेड लिस्ट में, इंडेंजर्ड है, ठीक है ना, क्या है इंडेंजर्ड है, ठीक है। इंडेंजर्ड स्टेटस मिला है इनको अंडर द IUCN रेड लिस्ट में, ठीक है। क्या मिला है अंडर द IUCN रेड लिस्ट में। हाईएस्ट प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1 और द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यार बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिला भाई इनको। हाईएस्ट प्रोटेक्शन अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर हाईएस्ट प्रोटेक्शन इनको मिला है, ठीक ना। कोल्ड स्पॉट्स लो डॉल्फिन डेंसिटी, ठीक, कोल्ड स्पॉट्स लो डॉल्फिन डेंसिटी, मतलब जो कोल्ड स्पॉट होते हैं ना, वहाँ पे जो डॉल्फिन होती है बहुत कम पाई जाती हैं, ठीक है। कोल्ड स्पॉट में कम जो है डॉल्फिन मिलती है वहाँ पे। तो नरोरा कानपुर स्ट्रेच गंगा की एनकाउंटर रेट ऑफ 0.1 डॉल्फिन पर किलोमीटर। फरुखाबाद कन्नौज स्ट्रेच में गंगा में है, फिर कौसम्बी चित्रकूट एरिया में यमुना वाली पीलीभीत, वहाँ पे
कम पाई जाती थी। बलरामपुर सिद्धार्थ नगर एरिया में भी कम थी। हॉट स्पॉट देखिए, हाई डॉल्फिन, जहाँ पे हॉट स्पॉट है ना वहाँ पे हाई डेंसिटी मिलती है, वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। जैसे बिहार में बहुत ज़्यादा थी, लगभग 1.62 डॉल्फिन थे पर किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में 0.62 थी। फिर चौसा चौसा मनिहार डिस्ट्रिक्ट में बिहार में 2.20 डॉल्फिन थी। मनिहारी बिहार टू राजमहल झारखंड 2.75 थी, ठीक है। एंड हाई डॉल्फिन ऑकरेंस इन बिहार एट्रीब्यूटेड टू डीपेस्ट रिवर चैनल, ठीक है। हाई डॉल्फिन ऑकरेंस इन बिहार एट्रीब्यूटेड टू डीपेस्ट रिवर चैनल, क्योंकि वहाँ पे डीपेस्ट रिवर चैनल है ना, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। अब हम लोग आ गए भाई किस पे, न्यूज इन शॉर्ट्स। अच्छा यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, याद रखना भाई, न्यूज इन शॉर्ट्स से भी क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि जो बड़ा बड़ा उसको पढ़ा दिए तो वही से आएगा। हर देखिए हर सब्जेक्ट में इसमें जो दिया ना, इकोनॉमी हुआ, पॉलिटी हुआ, साइंस हुआ, इन्वायरमेंट हुआ, आपको न्यूज इन शॉर्ट्स मिलेगा उसमें, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो न्यूज में रहती है उसमें देता ना एग्जाम में कि हाँ जो ये रिसेंटली न्यूज में था तो उसको बताइए क्या आंसर होगा उसका। तो वही तो ये इंपॉर्टेंट आपका पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। ठीक 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 ठीक, तो ये पूछेगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आ गए न्यूज चैप्टर पे, न्यूज इन शॉर्ट्स। तो ये देखते हैं खत्म हो पाएगा नहीं। हो अच्छा इतना बचा है तो इसको हम लोग अच्छा देखते हैं। देखते हैं भाई लोग, देखते हैं। चलो खत्म कर दिया जाए। आदि कर्मयोगी अभियान, मतलब कितना पेज है, एक पेज यहाँ पे हो गया, दूसरा पेज हो गया, तो ये खत्म हो जाना चाहिए। देखते हैं, ट्राई करते हैं भाई, वी विल ट्राई टू फिनिश दिस। तो क्या बोल रहा है, आदि कर्मयोगी अभियान। आदि कर्मयोगी अभियान इज ए कैडर बेस्ड इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, ठीक है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्रिएटिंग डिसेंट्रलाइज ट्राइबल लीडरशिप टू इंश्योर सर्विस, ठीक है, saturation up to the last mile, ठीक है, saturation up to the last mile. This campaign works in the convert manner with the PM German and Dharti Aba Janjati Gram Utkarsh Abhiyan के through. The campaign is initiated to implement in 1000 tribal dominated village, 3000 blocks and इतना। बस जानिए कि ये इतना जानिए कि आदि कर्मयोगी अभियान किससे रिलेटेड था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। कैडर बेस्ड इनिशिएटिव है विद ऑब्जेक्टिव टू क्रिएटिंग डिसेंट्रलाइज ट्राइबल लीडरशिप को इंश्योर करने, सर्विस सैचुरेशन को प्रमोट करिए, बस इतना जानिए। ध्रुव पॉलिसी या द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन हैज लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड ध्रुव क्या है, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। दिस पॉलिसी एम्स टू ब्रिंग अ ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज इन हाउ एड्रेसेस आर क्रिएटेड, स्टोर्ड एंड यूज्ड इन इंडिया, ठीक है। ये इसका बात करें कि एड्रेसेस को कैसे क्रिएट किया जाए, स्टोर किया जाए एंड यूज किया जाए, ठीक है। डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस की बात बोल रहा है, ठीक है। मेघालय पाइनएप्पल फेस्टिवल 2025 रिसेंटली इन अगस्त 2025 यूनियन मिनिस्टर एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान क्या बोले, इनॉग्रेटेड द मेघालय पाइनएप्पल फेस्टिवल, ठीक है। मेघालय का है पाइनएप्पल फेस्टिवल है, ठीक है, इन न्यू दिल्ली में, सेलिब्रेटिंग द रिच एग्रीकल्चर हेरिटेज एंड हॉर्टिकल्चर पोटेंशियल ऑफ नॉर्थ ईस्ट मेघालय। जेम मार्क्स 9 ईयर, ठीक है, जेम मार्क्स 9 ईयर। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM लॉन्च्ड, देखिए कब लॉन्च किया गया था, 2016 में लॉन्च किया गया था। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस लॉन्च इन 2016, ठीक है। अरे जो मेंस में हम लोग लिखते हैं ना, ई मार्केट प्लेस जरूर लिखते हैं, ठीक है। GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जरूर लिखते हैं। ये पायनियरिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजाइन टू मेक पब्लिक प्रोक्योरमेंट इन इंडिया मोर ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट एंड इंक्लूसिव। इन 2025 GEM सेलिब्रेटेड इट्स 9th फाउंडेशन डे एट द थीम, क्या थीम थी, ईज एक्सेस एंड इंक्लूजन, reaffirming its role in advancing the vision of a digital Bharat and fostering inclusive growth through the public procurement. अब मेरिट स्कीम क्या है, मेरिट स्कीम क्या है, ठीक है। तो कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर हैज अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन मेरिट स्कीम। The scheme is designed to enhance quality, equity, and governance in technical education. It aligns with the National Education Policy 2020. The scheme will cover 275 technical institutions. इतना दिस। अच्छा ये स्कीम कब से कब तक रहेगी, 5 साल के लिए रहेगी, ठीक है। 2025 से 2025 से 25-26 से 2029-30 तक रहेगी। नॉमिनेशन ऑफ द सारनाथ फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। नॉमिनेशन हुआ है, अभी इंक्लूड नहीं हुआ पूरी तरीके से, ठीक है। Nomination of the Sarnath into the World Heritage List. Recently, in August 2025, India has submitted this year a dossier third title, Ancient Buddhist Site Sarnath, to the UNESCO World Heritage Center for the nomination cycle. ठीक है, Sarnath has been on UNESCO tentative list since 1998. मतलब ये इसके अभी भी tentative list में है सारनाथ 1998 से, ठीक है, 1998 से ये अभी भी है। भारत NCX 2025 नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज
साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज एनसीएक्स 2025 was officially inaugurated, ठीक है, by the Deputy National Security Advisor T इतना इतना इतना. This exercise being conducted by the National Security Council in the in the collaboration with the Rashtriya Raksha University. ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ठीक है. ये नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज एनसीएक्स बोलते हैं उसको. एआई पावर्ड आंगनबाड़ी, ये इंपॉर्टेंट है. एआई पावर्ड आंगनबाड़ी. A quiet transformation is unfolded in Vadhamanna village near Nagpur में, ठीक है, महाराष्ट्र, where the country's first artificial intelligence powered आंगनबाड़ी has been established, inaugurated by the Maharashtra Chief Minister के द्वारा inaugurate किया गया है, ठीक है. With the project was launched, cost of 9.5 lakh from the जिला परिषद CSS fund. अग्निशोध क्या रिसेंटली, ठीक है, लैंडमार्क स्टेप टुवर्ड्स द आत्मनिर्भर इन डिफेंस टेक्नोलॉजी. द इंडियन आर्मी हैज जॉइंड हैंड्स विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास से टू इंस्टीट्यूट अग्निशोध इन इंडियन आर्मी रिसर्च सेल in on the IIT Madras campus. The research facility was formally inaugurated by the General Upeन्द्र द्विवेदी चीफ, ठीक है, किया गया. आर्मी से रिलेटेड है अग्निशोध, ठीक है. आत्मनिर्भर इन डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए फर्स्ट फुल्ली डिजिटली लिटरेट स्टेट. क्या है फर्स्ट फुल्ली डिजिटली लिटरेट स्टेट? तो केरला बना, ठीक है, डिक्लेयर केरला एज द फर्स्ट फुल्ली, ठीक है. पिनराई विजयन जो है चीफ मिनिस्टर वहाँ के, डिक्लेयर किया केरला एज द फर्स्ट फुल्ली डिजिटली लिटरेट स्टेट इन इंडिया, मार्क द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम फर्स्ट फेज. तो मतलब वो बन गया वो. ICRI Center of Excellence for South Cooperation in Agriculture, International Crop Research Institute for Semi-Arid Tropics, ICRI SAT, they in partnership with the Research and Information System for Developing Countries has launched the ICRI SAT Center for Excellence for South Cooperation in Agriculture. The launch took place during the conference on the Global South and Triangular Cooperation Emerging Facets, ठीक है. बस इतना जानिए कि जो ICRI SAT था क्या था. ICRI SAT था इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स था ICRI SAT वाला. भारतीय भाषा अनुभाग क्या है? तो होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च द भारतीय भाषा अनुभाग BBA, आल्सो नोन एज द इंडियन लैंग्वेज सेक्शन बोलते हैं इसको. द प्राइमरी एम ऑफ द BBA इज टू क्रिएट एन, क्या एम है? क्रिएट एन ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म दैट विल हेल्प रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द फॉरेन लैंग्वेज इन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब फॉरेन लैंग्वेज पे कम रहना है, जैसे इंग्लिश हुआ. इंदौर क्या है? इंदौर इंडिया फर्स्ट बेकर फ्री सिटी है इंदौर. अब इंदौर मध्य प्रदेश का है. हैज बीन डिक्लेयर्ड इंडिया फर्स्ट बेकर फ्री स्टेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट. ठीक है. भिक्षावृत्ति मुक्त भारत, ठीक है. भिक्षावृत्ति मुक्त भारत इसको बोलते हैं, बेगिंग फ्री, ठीक है. भिक्षावृत्ति मुक्त भारत बोलते हैं, बेगिंग फ्री इनिशिएटिव बोलते हैं, ठीक है. सहयोग यूनिवर्सिटी, ठीक है. हो गया इसमें, देखिए यहाँ देखना सहयोग इनिशिएटिव क्या बोल रहा है. रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट 2025 में रोल्ड आउट सहयोग, पायनियरी इनिशिएटिव डिजाइन टू फैसिलिटेट एक्सेस टू गवर्नमेंट वेलफेयर, ठीक है. एक्सेस टू गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम फॉर अर्बन पुअर के लिए इनिशिएटिव किया गया है. द इनॉग्रेटेड बाय द कृष्णा चंद्र महापात्रा, द स्टेट मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन, इज सीक टू ब्रिज द गैप बिटवीन अर्बन पॉवर्टी एंड अवेलेबल स्टेट असिस्टेंस थ्रू अ मल्टी प्राउंड अप्रोच. बस इतना जानिए. आत्मनिर्भर भारत स्टेशन स्कीम. द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड 403 रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन, ठीक है. रेलवे स्टेशन को डेवलप किया आत्म भारत रेलवे स्टेशन अक्रॉस सिटी डिस्ट्रिक्ट. इतना आत्मनिर्भर भारत, एक मिनट, रेलवे स्टेशन के लिए है, ठीक है. अंडर द आत्मनिर्भर भारत स्टेशन स्कीम के थ्रू ड्यूरिंग द इवेंट हेल्ड बीकानेर राजस्थान. कहाँ पर? राजस्थान में. आत्मनिर्भर भारत स्टेशन स्कीम, आत्मनिर्भर भारत स्टेशन को इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है. इंट्रोड्यूस बाय भारत मिनिस्टर ऑफ रेलवे के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया. टू एम्स टू रीडेवलप 1309 रेलवे स्टेशन इनटू द मॉडर्न इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट हब अक्रॉस इंडिया. एक्सेस टू मेडिसिन इंडेक्स रिपोर्ट. Access to Medicine Foundation released in 2024 index report evaluating pharmaceutical company, मतलब evaluate करेगी pharmaceutical company effort को to enhance medicine access to low and middle income countries, ठीक है. मतलब enhance मतलब बताएगी कि low and middle income countries में enhance करेगी कि इसके access को दिया जा सके, ठीक है. to enhance, ठीक है. Index report evaluating pharmaceutical companies effort to enhance medicine access to low and middle income country despite ongoing challenges, ठीक है. टॉप परफॉर्मर कौन है? नोवार्टिस claim the top position for the first time,
surpassing long-term leaders GSK, which now ranks second. अभी अदर हाई परफॉर्मेंस कौन है? सनोफी, Pfizer and टाइफर फिफ्थ, इट एस्ट्राजेनेका एंड जॉनसन जॉनसन. यूनियन गवर्नमेंट इनाग्रेटेड भारत बोध केंद्र. यूनियन गवर्नमेंट ने क्या इनाग्रेट किया है? भारत बोध केंद्र. ठीक. यूनियन मिनिस्टर हाउसिंग अर्बन अफेयर्स इनाग्रेटेड द भारत बोध केंद्र इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में. ठीक है, न्यू दिल्ली में इंडिया हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है. फर्स्ट स्टेट एआई बेस्ड रियल टाइम अलर्ट सिस्टम. फर्स्ट स्टेट एआई बेस्ड real time alert system. Madhya Pradesh became the first state in India to implement the AI based real time alert system for active forest management के लिए इसने लॉन्च किया. ठीक है, एक्टिव फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है. ठीक ना, AI based real alert system. ठीक, the announcement was made in 2025 अप्रैल में. System is currently being implemented as a pilot project across 5 sensitive forest division: Shivpur, Guna, Bidsa and Burhanpur and Khandwa. नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल सक्सेसफुली ड्रिल्ड. नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल एस्टेब्लिश्ड ड्रिल्ड कहाँ पे देखें? रिसेंटली इन मेजर स्ट्राइड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, द सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडी. ठीक है, सक्सेसफुली ड्रिल्ड द रीजन्स फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल इन अरुणाचल प्रदेश दिरांग विच इज सिचुएटेड इन. ठीक है, कहाँ पे ड्रिल किया है? अरुणाचल प्रदेश में दिरांग में, विच इज सिचुएटेड इन द वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है, the first well has been successfully drilled and CESH plans to expand operation with deeper drilling in future phases. सशक्त पंचायत नेतृत्व अभियान. ठीक है, सशक्त पंचायत नेतृत्व अभियान. द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज लॉन्च क्या किया? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत ने लॉन्च किया सशक्त पंचायत नेतृत्व अभियान एट ए नेशनल वर्कशॉप हेल्ड इन न्यू दिल्ली में. ठीक, द इनिशिएटिव एम्स टू एम्पावर वुमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. एम्पावर करना है वुमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन थ्रू स्ट्रक्चरल लीडरशिप ट्रेनिंग देंगे इनको एंड गवर्नेंस सपोर्ट. वनतारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, ये भी देख लीजिए, तो मुकेश अंबानी जी का है. वनतारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड वनतारा स्टेट ऑफ द आर्ट वाइल्ड लाइफ रिस्क केयर एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर लोकेटेड इन जामनगर गुजरात. दिस प्रोजेक्ट वाज ए ट्रिपल मॉडल, मतलब प्राइवेट मॉडल एक तरह समझिए, ट्रिपल मॉडल. ठीक है, दोनों पर आएगा. दिस प्रोजेक्ट वाज कंसेप्चुअलाइज्ड एंड एस्टैब्लिश्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्री, मतलब किसके द्वारा? रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा किया गया है. वनतारा स्पैन्स अराउंड 3500 एकर्स एंड हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. एडवांस्ड है बहुत ज्यादा. Vantara is home to a vast area of 2,000 species, including both indigenous and exotic wildlife. ठीक है, एंड एक्जोटिक वाइल्ड लाइफ. ठीक, मतलब इसमें बहुत सारे इंडिजिनस भी हैं वहाँ पे, एक्जोटिक मतलब बहुत सारे रेयर एनिमल भी वहाँ पाए जाते हैं. ठीक ना, बस लास्ट पेज हम लोग खत्म करते हैं इस वीडियो का. देखिए यहाँ क्या बोल रहा है? एमंग द मोस्ट रिमार्केबल इनिशिएटिव इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट चीता कंजर्वेशन प्रोग्राम. Among the most remarkable initiative is the world's largest cheetah conservation program aiming to revive the species in India. Notably, Vantara hosts the largest, क्या बोल रहा है? Vantara hosts the largest elephant hospital in the world. The world का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल कहाँ पे? वंतारा में है. ठीक है ना, focusing on the recovery and long term care of the elephants risked from abuse, captivity and सर्कस से. वहाँ से अभी देखिए न्यूज में आया था ना कि वहाँ केरला तमिलनाडु के लोग जो विरोध कर रहे थे कि जो वहाँ के हाथी थी, वहाँ के एलिफेंट थी, बहुत ज़्यादा उनकी पूजा होती थी और लोग रखे थे, उसकी कंडीशन बहुत खराब हो गया था, तो ये वंतारा में शिफ्ट की गई थी बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट के द्वारा. तो ये लोग विरोध करने लिए लगे कि हमको फिर से वापस चाहिए. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, जो हो गया. ठीक है, बहुत प्रॉब्लम में थे वो एलिफेंट, तो उसको वहाँ पे भेज दिया गया उसकी केयर के लिए, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया. ठीक है, यहाँ देखिए in recognition of its holistic approach, in recognition of its holistic approach to animal care, risk and conservation, Vantara was recently conferred as the prestigious प्राणी मित्र नेशनल अवार्ड. किसको मिला? प्रेस्टिजियस प्राणी मित्र नेशनल अवार्ड किसको मिला? वनतारा को. ठीक है, इसको मिला वनतारा को. कहाँ पे? गुजरात में है, जामनगर गुजरात में है. आयुष्मान भारत वय वंदना कार्ड. ठीक है, आयुष्मान भारत वय वंदना कार्ड. इन द क्वेश्चन ऑफ द धनवंतरी जयंती एंड आयुर्वेदा डे. ठीक है, धनवंतरी जयंती एंड आयुर्वेदा डे 29 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेटेड मल्टीपल हेल्थ सेक्टर प्रोजेक्ट्स वर्थ अप्रॉक्सीमेटली इतना करोड़ एट एम्स एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली में. मार्केटिंग एंड ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप इन हेल्थ केयर. द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस दैट एवरी सीनियर सिटीजन एज 70 एंड अबव वुड रिसीव फ्री ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल. ठीक है, क्या बोला है? एवरी सिटीजन एज 70 एंड अबव, ठीक है, वुड रिसीव फ्री ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल. मतलब कोई भी गरीब रहे अमीर रहे, 70 ईयर्स ऊपर है, तो आपको फ्री ट्रीटमेंट मिलेगी. ठीक है, फ्री ट्रीटमेंट मिलेंगी आपको. ठीक है,
आपको वह वंदना कार्ड के थ्रू, आयुष्मान भारत वाला, सच एल्डरली इंडिविजुअल विल प्रोवाइडेड विद द आयुष्मान वह वंदना कार्ड को प्रोवाइड किया जाएगा, ग्रांटिंग देम एक्सेस टू कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर बेनिफिट्स, ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर बेनिफिट्स अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के थ्रू इनको क्या दिया जाएगा, आयुष्मान वह वंदना कार्ड। इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर इन सिक्किम, ठीक है, इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर इन सिक्किम, तो इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर इन सिक्किम की बात कर रहा है, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह लॉन्चेज इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर इन सिक्किम में, ठीक है, ऑर्गेनिक फिशरी को वहाँ प्रमोट कर रहे हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, ठीक, और बोल रहे हैं, देखिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नबार्ड जो है ये की स्टेक होल्डर्स इन डेवलपिंग द फिशरीज एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिक क्लस्टर इन सिक्किम में प्रमोट कर रही है। 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस वैक एंड आरोग्य एक्सपो वर इनॉग्रेटेड इन देहरादून, ठीक है, 10th वर्ल्ड आरोग्य कांग्रेस, ठीक है, द 10th वर्ल्ड आरोग्य कांग्रेस वैस एंड आरोग्य एक्सपो वर इनॉग्रेटेड इन देहरादून में इनॉग्रेट किया गया है। इट वाज इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष प्रताप यादव, उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर ए.बी. भगवा सर, ठीक है। बस आयुर्वेदा कांग्रेस को जानिए, आयुर्वेदा कांग्रेस, वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस की बात कर रही है, देहरादून में इनको इनॉग्रेट किया गया। द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द वर्ल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन, सेंट्रल थीम क्या है, डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव, क्या है थीम, डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025, रिसेंटली द भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 वाज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट द भारत मंडपम, ठीक है, भारत मंडपम में न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किए हैं, न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किए हैं, ठीक है, भारत मंडपम न्यू दिल्ली। द एक्सपो वाज हेल्ड, ठीक है, द एक्सपो वाज हेल्ड अक्रॉस 3 आइकॉनिक वेन्यूज, भारत मंडपम न्यू दिल्ली, यशोभूम द्वारका एंड इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 हैज बिकम द सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमोटिव एक्सपो इन द वर्ल्ड, ठीक है, क्या बन गया है, सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमोटिव एक्सपो बन गया है वर्ल्ड का, ठीक है, सेकंड, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो है ना 2025 का, दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है, सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमोटिव एक्सपो बन गया है वर्ल्ड का। Establishment of the third launch pad, ये भी important है यार, establishment of the third launch pad, the union cabinet chaired by the prime minister Narendra Modi approved the establishment of the third launch pad at Satish Dhawan Space Center of ISRO at Sriharikota, आंध्र प्रदेश। आज इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बैंगलोर में है, ठीक है, अभी दिल्ली मत मानना, बैंगलोर में है, कर्नाटका वाले रीजन में, तो वहाँ पे हेडक्वार्टर है इसको इसरो का। और सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे है, श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, एकदम कोस्टल रीजन में, ठीक है, ईस्टर्न साइड में, कोस्टल एरिया में, जिससे वहाँ से मिसाइल जो लॉन्च करते हैं। तीन लॉन्च पैड हो गया है इंडिया के पास, ठीक है, इंडिया के पास 3 लॉन्च पैड हो गया, थर्ड लॉन्च पैड। द थर्ड लॉन्च पैड प्रोजेक्ट envisages the establishment of the launch infrastructure for the next generation launch vehicle of the ISRO and also to support as standby launch pad for the second launch pad at Sriharikota, ठीक है। ग्रामीण भारत महोत्सव क्या बोल रहा है, The Prime Minister Narendra Modi inaugurated ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 at भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, Building the Resilient Rural India for विकसित भारत 2024 as the theme for the महोत्सव, ठीक है। भारत पोल पोर्टल, ठीक है, भारत पोल पोर्टल क्या बोल रहा है, Recently, Union Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah inaugurated the Bharat Poll portal developed by the Central Bureau of Investigation. किसने डेवलप किया है, डेवलप बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इसको डेवलप किया है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। थ्रू भारत पोल, ठीक है, थ्रू भारत पोल, ठीक है, कॉर्पोरेशन अमित शाह इनाग्रेटेड द भारत पोल डेवलप बाय द सीबीआई के थ्रू इसको इनाग्रेट किया गया, ठीक है, सीबीआई डेवलप बाय द सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इसको डेवलप किया है, ठीक है, न्यू दिल्ली में, ठीक, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। थ्रू भारत पोल एवरी एजेंसी एंड पुलिस फोर्सेज इन इंडिया, ठीक, भारत पोल के थ्रू क्या होगा, एवरी एजेंसी एंड पुलिस फोर्स इन इंडिया विल बी एबल टू सीमलेसली कनेक्ट विद इंटरपोल, ठीक है, जितनी एजेंसी एंड पुलिस फोर्स है इंडिया की वह इजीली जो कनेक्ट हो जाएंगे किससे, इंटरपोल से, देयर बाय एक्सपीडिटिंग इन्वेस्टिगेशन, मतलब इन्वेस्टिगेशन किससे एक्सपीडिट होगा। फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट, ये भी याद कर लीजिए, फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ऑर्गेनाइज फर्स्ट बुद्धिस्ट समिट, ठीक है, न्यू दिल्ली में, फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट न्यू दिल्ली में। तो फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑर्गेनाइज्ड बाय किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, एंड द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन। थीम क्या था, रोल ऑफ द बुद्धा धर्म
रोल ऑफ द बुद्ध धर्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। आयुष मिनिस्ट्रीज वाई ब्रेक इमर्ज एट द टॉप परफॉर्मर इन आईगोर प्लेटफॉर्म। आयुष मिनिस्ट्रीज वाई ब्रेक इमर्जेज एट द टॉप परफॉर्मर इन आईगोर प्लेटफॉर्म। 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इनिशिएटिव, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इनिशिएटिव योगा ब्रेक एट वर्क प्लेस, योगा ब्रेक एट वर्क प्लेस, वाई ब्रेक बोलते हैं इसको, ये मतलब योगा परफॉर्म करिए। हैज बीन अवार्डेड द सर्टिफिकेट ऑफ द एप्रिसिएशन फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑन आई गुड कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म, ठीक है। इंडियाज ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है भाई, बस जाने योगा के लिए था, ठीक है, योगा के लिए था, बस इतना जानिए। अब देखिए इंडियाज फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट, इंडियाज फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट। देखिए रिसेंटली 2024 डाटा जितेंद्र सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट इंचार्ज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनॉग्रेटेड द न्यू कॉम्प्लेक्स ऑफ इंडियाज फर्स्ट, ठीक है, इंडियाज फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ब्रिक नेशनल, ठीक है, बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट। इंडिया का फर्स्ट, एक मिनट इंडिया का फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ब्रिक नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ब्रिक नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ब्रिक नाबी एट मोहाली चंडीगढ़ में इन्होंने खोला, ठीक है। बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ खोला? इंडिया का फर्स्ट मोहाली चंडीगढ़ में, ठीक है। तो हम लोगों ने खत्म कर लिया नेशनल न्यूज़ को, शॉर्ट न्यूज़ को। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टडी द इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक। तो इसको ये खत्म करते हैं, देन यहाँ पे जो है इंटरनेशनल अफेयर को हम लोग जो खत्म करेंगे नेक्स्ट में, ठीक है ना। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है। एंड यू कैन ज्वाइन, ठीक है, एंड यू कैन ज्वाइन द ग्रुप इन टेलीग्राम ग्रुप। कहाँ से? यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन पार्ट है ना, वहाँ पे जाएंगे, उसके नीचे जाएंगे तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ ज्वाइन करके आप वहाँ से कोई भी डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वही मैं मटेरियल भी सेंड करता हूँ, तो वहाँ पे उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में भी आप बता सकते हैं। कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी तो यू कैन टेल दैट, यू आर वेलकम टू टेल दैट इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो चलते हैं गाइस, या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग खत्म करेंगे। तो हम लोग घटना चक्र खत्म करके रहेंगे, डोंट वरी, आराम से करेंगे, ठीक है। चलते हैं गाइस, बाय 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 बाय, गुड नाइट।